السلام علیکم دوستوں، میں ہوں علی نذیر، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں آپ کے ہفتے کے حوالے سے کہ آپ کا ہفتہ کیسا رہے گا۔ ہفتہ وہ جو شروع ہوگا 12 ستمبر سے لے کر 18 ستمبر تک۔ تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ایریز سے، لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ پریڈکشنز نہیں ہوتی۔ اس چیز کو آپ کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ یہ ایسٹرو ویدر ہے، یہ ایک محکمہ موسمیات کی طرح ہم آپ کو کیلکولیٹ کر کے بتاتے ہیں کہ ستاروں کی کیا پوزیشن ہے اور اس کی کیا ریز آ رہی ہیں اور اس کے کیا افیکٹس ہو سکتے ہیں۔ تو اس کو ہمیشہ ذہن میں یاد رکھیے گا۔ شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ایریز سے۔ ایریز دوستوں کے لیے یوں لگتا ہے کہ اس ہفتے آپ کا ذہن جو ہے وہ اس وقت چل رہا ہے اس بات پر کہ تبدیلی لائی جائے، زندگی میں تبدیلی لائی جائے، روٹین میں تبدیلی لائی جائے، کریئر میں، یعنی کہ اب ہر چیز میں جو آپ کی ہے، آپ کا کریئر، آپ کا گھر، آپ کے روٹین، آپ کی ساری جو ارد گرد کی چیزیں ہیں اس کے حوالے سے آپ چینج کرنا چاہتے ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے آپ کسی نئے راستے کی تلاش میں، کسی نئے پاتھ کی تلاش میں ہیں اور اس میں آپ کو چینجز چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ کے کچھ دوست ہیں، آپ کو اپنے دوستوں کے حوالے سے تھوڑا سا ان کی باتوں کو غور سے سننا، آپ کو جیسے کوئی زومانی باتیں، جیسے انسینویشنز ہوتی ہیں وہ دی جا رہی ہیں کہ ایسے ایسے ایسے، اور آپ شاید سمجھ نہیں پا رہے دوستوں کی باتوں کو۔ وہ سمجھنے کی آپ کو شدید ضرورت ہے، اور اس کے علاوہ آپ کو ڈیپ کانورسیشنز کی ضرورت ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں راز کی باتیں، ڈیپ کانورسیشن، جاننے کی کوشش کیجیے، بات کرنے کی کوشش کیجیے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کیجیے کہ جو آپ کے دوست ہیں یا آپ کے کالیگز ہیں، جو آپ کے ارد گرد کے لوگ ہیں، وہ چاہتے کیا ہے، ان کی مرضی کیا ہے، اور اس وقت ان کے ذہن میں چل کیا رہا ہے، کیونکہ کچھ نیگیٹیوٹی ہے جو آپ کے حوالے سے لوگوں کے ذہن میں چل رہی ہے، اور لوگ بھی وہ جو آپ کے بہت اس وقت قریب ہیں۔ اب بات کرتے ہیں آپ کے ٹیرو کارڈز کے حوالے سے۔ اس ہفتے کی آپ کی گڈ انرجی بہت زبردست ہے۔ اس ہفتے کی گڈ انرجی میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے ماضی کی بازگشت ہے، ماضی کی بازگشت ہے، پرانے دوست ہیں، پرانے لوگ ہیں، پرانی باتیں ہیں، ان کے حوالے سے رابطے ہیں۔ یہ رابطے، یہ کانورسیشن، یہ باتیں جو ہیں یہ آپ کے لیے اچھی ثابت ہو سکتی ہیں، لیکن آپ نے ایک اور احتیاط کرنی ہے کہ اگر آپ جو پچھلے دنوں بیمار رہے، اس سال 2021 میں اگر آپ کو کوئی بیماری رہی، کوئی بھی چھوٹی موٹی بڑی جیسی بھی بیماری تھی، اس کا دوبارہ اس ہفتے حملہ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اس حوالے سے اپنی صحت کا لازمی خیال رکھیے گا، کیونکہ ابھی اس سال میں ہونے والی جتنی باتیں ہو سکتا ہے ان کا ری رن آپ کو اس ہفتے نظر آئے۔ اب دیکھتے ہیں اس ہفتے کی نیگیٹو انرجی آپ کے لیے کہ نیگیٹو انرجی یہ ہے کہ جیسے ایک انسان کے withdrawal سمٹمز نظر آتے ہیں آپ کے اندر، کہ آپ پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں، پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ اگر سپاہی میدان سے بھاگ جائے تو جنگ تو ہار جاتا ہے نا، تو آپ کا اسٹیٹ آف مائنڈ اس ٹائپ کا ہے جیسے کہ بندہ withdrawal میں چلا جاتا ہے، ڈینائل میں چلا جاتا ہے۔ چیزوں کو ہیڈ آن لیجیے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کیجیے، فیس ٹو فیس چیزوں کو دیکھیے، نظر نہ چرائیے۔ اب دیکھتے ہیں آپ کا ہیلتھ الرٹ۔ ہیلتھ الرٹ آپ کا تھوڑا سا آپ کو کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے، خاص طور پر جیسے ہوتا ہے تیزی سے بچنا ہے، شدت سے بچنا ہے، تیز بخار کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ دکھائی دیتی ہے، لہٰذا آپ اس میں ڈیلے نہ کیجیے گا۔ بخار ہو تو اس کو فوراً دیکھیے گا کہ یہ کیوں بخار ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ ڈرائیونگ آہستہ کیجیے گا، اور اگر آپ رننگ کرتے ہیں یا آپ اسپورٹس مین ہیں تو آپ کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اب دیکھتے ہیں آپ کا لو الرٹ کیا ہے۔ لو الرٹ میں یہ ہفتہ تھوڑا سا خاموش دکھائی دیتا ہے، جیسے اگر کوئی لڑائی تھی تو وہ بھی ختم ہو گئی، اگر کوئی جھگڑا تھا تو وہ بھی ختم ہو گئی، جیسے ایک ریسٹ کا ٹائم ہے، کچھ خاموشی سی، کچھ ریسٹ سی، کچھ دھندلاہٹ سی۔ اب دیکھتے ہیں اس ہفتے کا آپ کا کریئر اور ایجوکیشن۔ کریئر اور ایجوکیشن میں بے پناہ کمپٹیشن نظر آتا ہے۔ لگتا ہے کہ آپ کے دوست بھی آپ کے، جیسے میں نے آپ کو تبھی بتایا تھا، اسٹرالوجی میں بھی بتایا تھا کہ آپ کے دوست جو ہیں وہ شاید آپ کے کمپٹیشن میں آ گئے ہیں، لہٰذا آپ کو کمپٹیشن کا خیال رکھنا ہے، اپنے ایجوکیشن میں بھی اور اپنے کریئر میں بھی۔ اور کمپٹیشن کٹ تھروٹ کمپٹیشن ہے، آگے بڑھنے کا جنون ہے سب کو۔ تو اب دیکھتے ہیں اس ہفتے آپ کا نیمرالوجی کے حوالے سے کیا نمبر بنتا ہے۔ آپ کا نیمرالوجی کے حساب سے بنتا ہے 26۔ 26 نمبر جو ہوتا ہے نا، اٹس آل اباؤٹ رومانس، اٹس آل اباؤٹ لو۔ اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ آپ کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں، آپ کی طرف آپ کو انوائٹ کرتے ہیں، تو مجھے نہیں پتا چلتا جب بھی 26 نمبر آتا ہے اکٹھا تو کیسے، کہاں سے، کیوں، مگر محبت آل اوور، جو جسے کہتے ہیں نا افق پہ بادل مکمل محبت کے چھا جاتے ہیں۔ سو اٹس اے ویری گڈ نمبر۔ 26 نمبر جو ہے اس کی کافی زیادہ ویلیو ہوتی ہے آپ کی انر لو کے حوالے سے، سول میٹ کے حوالے سے، محبت کی جو سچی کیفیت ہوتی ہے اس کے حوالے سے۔ دیکھتے ہیں آپ کا جیم سٹون کیا ہے اس ہفتے کا، اور آپ کا لکی
कलर क्या है इस हफ्ते के लिए? कार्नेलियन है जी आपका पत्थर। कार्नेलियन होता है, ऑरेंज से कलर का पत्थर होता है, और रेड एंड ऑरेंज के बीच का होता है कार्नेलियन। ये आराम से मिल जाता है। इस वक्त मेरे पास कोई कलर नहीं पड़ा, कोई सैंपल नहीं है, लेकिन ये ऑरेंज और बड़ा खूबसूरत पत्थर है। आप नेट पे इसको तलाश कर लीजिएगा, और कलर आपका ग्रीन बनता है। ग्रीन जो फ्रेश लश ग्रीन होता है जी, वो आपके लिए इस हफ्ते का लकी रहेगा कलर। अब देखते हैं आपकी इस हफ्ते का डिवाइन मैसेज क्या है। डिवाइन मैसेज आपका इस हफ्ते का है जी कि आपको जो मोहब्बत मिल रही है, जो मोहब्बत आपके पास खुद चल कर आ रही है, उस मोहब्बत के बारे में कंफ्यूज या इनडिसाइसिव होने की जरूरत नहीं है। ये मोहब्बत आपके कर्मा का इनाम है। आपने जो भी भला किया तो उसका आपको इस हफ्ते इनाम मिल रहा है। मूव करते हैं अपने अगले साइन टॉरस की तरफ। हमारे टॉरस दोस्तों के लिए इस हफ्ते का जो एस्ट्रोलॉजी का मैसेज है ना, वो ये कि आप एक पेस क्रिएट कीजिए। जैसे होता है ना कि आपको जैसे कभी बहुत तेजी, कभी बहुत हल्का, तो इस हफ्ते थोड़ा सा जैसे हाई एंड लो बहुत ज्यादा है, तो ये वो हफ्ता है जब आपको टोन सेट करनी है, पेस सेट करनी है। आने वाले 2-3 हफ्तों की हो यूं रहा है कि आपके जो तबीयत है ना, उसमें कुछ इस तरह सा नजर आता है, कोई बेचैनी सी नजर आती है, उससे निकलने की कोशिश कीजिए। और एक समटाइम्स होता है कि आपके लिए एक मैसेज आता है कि टेक अ चांस। आप चांस लीजिए। आगे जो आपके सामने जो भी आपका इस वक्त है, इशू है, मसला है, जो भी चीज है, आप एक चांस ले सकते हैं, एक रिस्क ले सकते हैं, जोरदार हमला कर सकते हैं। सोचिए मत। लेकिन जिस चीज को आपने देखना है या डिसाइड करना है, वो है पेस कैसे सेट की जाए, क्या स्पीड क्या होनी चाहिए, टाइमिंग क्या होनी चाहिए, क्योंकि आपकी टाइमिंग इस हफ्ते कुछ आउट नजर आ रही है। और उसके बाद एक और बात भी कि जो जहां पर आप काम कर रहे हैं, या स्कूल में, कॉलेज में है, या जॉब में है, या घर में है, तो कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं या ऐसे कवानीन पास हो सकते हैं जो आपको इरिटेट करें। आपको लगे कि ये जो बात है, ये जो कानून पास हुआ है, ये जो मसला है, ये नॉन सेंसिकल है, इसमें कोई कॉमन सेंस नहीं है। लेकिन अब हालात ये हैं कि आपको वो जो कानून है वो मानने भी पड़ेंगे, फॉलो भी करने पड़ेंगे, लिहाजा उस पर इरिटेट होने की जरूरत नहीं है। ऑल यू नीड इज टू मेक एडजस्टमेंट। जब आप एडजस्टमेंट्स कर लेंगे तो उसके बाद आपको ये चीज इतनी नॉन सेंसिकल नहीं लगेगी। इस हफ्ते ज्यादातर आपको यही लग रहा है कि हर चीज जो है ना, उसमें कोई अहमकानापन है, हर चीज में कोई सेंस नहीं बन रही है, तो इससे आप इरिटेट होते दिखाई देते हैं। लेकिन इसे आप कुछ कर तो नहीं सकते। आपको सिर्फ अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है और चीजों को मुलतवी नहीं करना। आपका मूड जो है इस हफ्ते का वो ऐसा है कि चीजों को डिले किया जाए, जिसे हम प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं कि आगे 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 कल कर लेंगे। कल जिस भी चीज पर आपने कल किया वो समझ लीजिए कि पेंडिंग है। और एक जैसे आप नोट लिख के अपने बेड साइड पर या अपने कमरे में या सामने शीशा है, उस पर एक नोट लिख लीजिए कि गेट द जॉब डन। गेट द जॉब डन। तो जब तक आप ये नहीं करेंगे, आप चीजों को डिले करते जाएंगे, आगे पीछे करते जाएंगे। अब देखते हैं सब देखिए आपकी पॉजिटिव एनर्जी के। पॉजिटिव एनर्जी की पैसा, कामयाब प्रोजेक्ट्स, कोई जॉब की में तरक्की, समथिंग सम इम्प्रूवमेंट इन सम हैवी एंड गुड इम्प्रूवमेंट इन फाइनेंसेस। देखते हैं आपके लिए नेगेटिव एनर्जी। नेगेटिव एनर्जी ये है कि रुकावट, जो काम आपने शुरू किया था, मसलन पिछले कुछ अरसे से आपने कोई नया काम शुरू किया, नया प्रोजेक्ट शुरू किया, हर्डल्स एंड रुकावटें हैं और ये लोग क्रिएट कर रहे हैं, और मकसद सिर्फ आपको परेशान या इरिटेट करना है। आप इरिटेबल हुए हैं, लिहाजा जो लोग हैं वो ज्यादा आपको इरिटेट कर रहे हैं। आपका हेल्थ अलर्ट ठीक है, सिर्फ मैदे में प्रॉब्लम है, इंटेस्टाइन्स में कोई इश्यूज नजर आते हैं। मे बी आप इस हफ्ते सुस्ती का मुजाहरा ज्यादा कर रहे हैं, कुछ ज्यादा यू नॉट, आपकी मूवमेंट बहुत कम है या बहुत ज्यादा है, तो उस वजह से आपकी जो है थोड़ा सा स्टमक में प्रॉब्लम्स नजर आती है, इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम नजर आती है। इसके अदरवाइज हेल्थ अलर्ट ठीक है। लव अलर्ट देखते हैं। लव अलर्ट में थोड़ा सा एहसास तन्हाई है और शिकायत है आपके अंदर कि आपका साथी आपका साथ नहीं दे रहा या कोई वादा नहीं पूरा कर रहा, और जो लोग हैं जिन पर आप रिलाई करते हैं, जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, उनकी तरफ से सरमहरी का नजर आता है थोड़ा सा। उसके बाद आपकी जॉब में मुखालफत बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा जॉब में मुखालफत है कि आपको एक जैसे जोरदार किस्म का एक स्टेप लेना पड़ेगा। मैंने आपको पहले कहा ना कि एक कदम बढ़ाइए और एक सॉलिड किस्म की
کوئی اچیومنٹ کیجیے. اسی طرح کا جواب ٹیروس میں بھی آیا کہ اپنی جو سرحدیں ہیں وہ ڈیفائن کر لیں. آپ کے کاموں میں بہت زیادہ مداخلت ہوگی. مثلا آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں, صبح آپ کا پیپر ہے تو گھر میں بہت زیادہ شور شرابہ, میوزک, اونچا ٹی وی, تو جو آپ کے لیے پرابلم ہوگا. لہٰذا آپ جو چاہتے ہیں وہ کہنا پڑے گا, بلکہ ذرا اونچی آواز میں کہنا پڑے گا. اب دیکھتے ہیں کہ آپ کا جو ہے نمبر کیا ہے. نمبر آپ کا 13 ہے, 13 کو ویسے تو انلکی نمبر کہا جاتا ہے, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ 13 جو ہے یہ ایک نمبر ہے جہاں پر آپ کو کچھ ہٹ کے کرنا پڑتا ہے, ایفرٹ کرنا پڑتا ہے. 1 اور 3 جب کمپٹیشن میں آتے ہیں, اکٹھے آتے ہیں, تو یہ لکی ہوتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ آپ کو کچھ ملنے والا ہے, کوئی اچیومنٹ ہے. جیسے آپ کسی کامیابی کی تیاری کیجیے, جیسے گھر کا کسی بڑے فنکشن سے پہلے رنگ روگن کر کے اس کی صاف صفائی کی جاتی ہے, اس طرح سے آپ کو اس ہفتے جیسے آپ پریپیئر کر رہے ہیں, پریپیئر کرتے نظر آ رہے ہیں کسی بڑی اچیومنٹ کے لیے, کسی بڑی خوشی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے. آپ کا لکی کلر اور لکی سٹون اس ہفتے کا, آپ کا لکی کلر اور سٹون ایمیتھسٹ ہے. ایمیتھسٹ کی جو لائٹر فارم ہے کاستی رنگ کا ایمیتھسٹ, یہ کاستی رنگ کا ایمیتھسٹ ہوتا ہے. یہ اس رنگ میں آپ کو ایمیتھسٹ آپ کو چاہیے اپنے سرہانے رکھیے, اپنے پاس رکھیے, کیونکہ ایمیتھسٹ ایک ماسٹر ہیلر ہے. اول تو یہ ہر وقت ہونا چاہیے آپ کے پاس, اس طرح سے جیسے یہ بال کی صورت میں ہے, اس طرح سے یہ ایمیتھسٹ کے پیسز مل جاتے ہیں. لہٰذا یہ آپ کے پاس ہونا چاہیے, کیونکہ آپ کے لیے کچھ عرصے سے, چند سالوں سے پلانیٹری پوزیشن میں اضطراب ہے. اضطراب سے نکلنے کے لیے جو بیسٹ پتھر ہوتا ہے وہ ایمیتھسٹ ہوتا ہے. تو ایمیتھسٹ آپ کے پاس ویسے ہونا چاہیے, لیکن اس ہفتے خاص طور پر آپ کے لیے ہونا چاہیے. اور جو آپ کا کلر نکل رہا ہے جی, وہ آپ کا کلر گہرا جامنی گہرا پرپل نکل رہا ہے, ڈارک پرپل, جو جیسے بہت گہرا کالا, کالے کے قریب والا پرپل. اب آپ دیکھتے ہیں آپ کے لیے اس ہفتے کا ڈیوائن میسج کیا ہے. اس ہفتے کا ڈیوائن میسج آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ کو جو ارد گرد پھیلے ہوئے لوگ ہیں, اپنے آپ سے نکلے, اپنی ذات سے نکل کے اپنے سے قریبی ایک امیجیٹ فیملی ہوتی ہے آپ کی, سب ان سے بھی نکل کر, جیسے اپنے گھر سے نکل کر باہر گلی میں آ کر جو لوگ آپ سے کنیکٹڈ نہیں ہیں کسی بھی طرح, ان کی طرف توجہ دیجیے, ان کے مسئلے مسائل حل کیجیے. کوئی بیمار ہے یا موسم بدل رہا ہے, کسی کے بچوں کو دوائی کی ضرورت ہے, کسی کے گھر میں کوئی مسئلے مسائل ہیں, تو ذرا پتہ کیجیے. کیونکہ اگر آپ یہ قدم اٹھاتے ہیں, ان لوگوں کا پتہ کرتے ہیں جن سے آپ کو کوئی لینا دینا نہیں ہے, جن سے آپ کو کوئی توقع نہیں ہے, ان کی مدد آپ کریں گے, تو آپ کے لیے بہت سارے نئے راستے خود بخود کھلیں گے. اب موو کرتے ہیں جیمنائی کی طرف. ہمارے جیمنائی دوستوں کے لیے اس ہفتے میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کو کچھ چوائسیز, یو آر میکنگ فیو چوائسیز, اور جو ہمارے جیمنائی دوست ہیں انہیں آپشنز بہت اچھے لگتے ہیں, بہت مزہ آتا ہے کہ ان کے سامنے 2 راہیں ہوں, 3-4 چیزیں ہوں, انہیں پیک اینڈ چوز کرنا پڑے. آپ کے لیے ہفتہ اسی قسم کا ہے. اور جیسے ہوتا ہے کہ آپ کو آپ کا اندر بتائے گا کہ یہ ٹھیک ہے, یہ غلط ہے. آپ کے اندر میں ایک کیفیت ایسی لگ رہی ہے کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ ایک چیز آپ کو بے پناہ اچھی لگ رہی ہے اور ایک چیز بے پناہ بری لگ رہی ہے. کوئی بیلنس اپنے اندر رکھیے, کیونکہ اس ہفتے میں جو آپ ڈیسیژن کرنے جا رہے ہیں وہ اگلے پورے 4 ہفتے ان کو آپ کو بھگتنا بھی پڑے گا, فیس بھی کرنا پڑے گا. لہٰذا بہت دھیان سے اپنے آپشنز ایکسرسائز کیجیے گا, اپنے چوائسیز کو چوز کیجیے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کے جو ہے نا فیصلے, ان میں آپ کو میتھمیٹکس پر توجہ دینی ہے. اپنی جو کیلکولیشنز ہیں نا, انہیں آپ نے جسے کہتے ہیں نا کچن سے کار تک آپ نے ہر کیلکولیشن کو دیکھنا ہے, ہر چیز کو میئر کرنا ہے. کیونکہ کچھ ایڈجسٹمنٹس ایسی ہیں جو آپ مس ایڈجسٹمنٹس ہیں جو آپ کی کیلکولیشن میں آ رہی ہیں, جو آپ کو نقصان ہو سکتا ہے. اگر فار ایگزامپل آپ نے کسی کے 10 روپے دینے ہیں تو آپ کو لگے گا میں نے اس کو 5 روپے دینے ہیں. کسی سے آپ نے 100 روپے لینا ہے تو آپ کو لگے گا میں نے کیلکولیشن میں آئے گا کہ آپ کو 50 روپے ہیں. ہر 2 صورت میں آپ ہی کا نقصان ہے. لہٰذا اپنی جو کیلکولیشنز ہے نا وہ بیسک سے لے کے اینڈ تک ان پر ذرا نظر رکھیے گا. اور جو ہے نا کہیں پر مس کیلکولیشن ہو گئی ہے, تو اگر کوئی مس کیلکولیٹ کر کے آپ کو دیتا ہے, کیونکہ آپ کے سامنے آپ کو مس کیلکولیشن کا سامنا رہے گا, تو اس پر آپ نے شک نہیں کرنا کہ یہ بے ایمان ہے. بے ایمان شاید لوگ اس وقت آپ کے ارد گرد کے لوگ بے ایمان نہیں ہیں. یہ ہو رہا ہے کہ کچھ ایسٹرو ویدر ایسا ہے کہ چیزیں صحیح طرح سے گنی نہیں جا رہی, کیلکولیٹ نہیں صحیح طرح سے ہو رہی, جس کی وجہ سے یہ پرابلم ہے. اور اس کے بعد آپ کے جو جاب جہاں بھی آپ کر رہے ہیں, جو کام آپ کا ہے, وہاں پر ونڈ فال ہے.
windfall of any good thing, positive energy, पैसा हो गया, कुछ भी हो गया, तो पॉजिटिव एनर्जी की विंडफॉल है आपके जॉब के हवाले से। और उसके साथ साथ आपका जो घर का माहौल है, एक काम कीजिएगा कि जब आप दफ्तर से निकलते हैं, दफ्तर का काम अपने घर लेकर नहीं आना, क्योंकि जब आप ऑफिस का काम घर लेकर आएंगे तो बहुत सारे कंफ्यूजन्स और पैदा हो जाएंगे, हो सकता है आपसे कोई मेजर गलती हो जाए। तो घर में दफ्तर नहीं, दफ्तर में घर नहीं। और अगर आप घर से काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम करें, तो इसका जो है वो कुछ ऐसा प्रबंध कीजिए, कुछ ऐसा कीजिए काम कि दोनों चीजें अलग रहें, मिक्स ना हो। ये बहुत बड़ी आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। ओवरऑल आपके लिए ये हफ्ता अच्छा है और रिसोर्सेज के हवाले से अच्छा है, रिसोर्सेज की विंडफॉल के हवाले से अच्छा है। आपने जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने जो ध्यान है ना, कि आपका जो बैलेंस, इमोशनल बैलेंस है, उस पर आपने तवज्जो रखनी है। टैरोस के हवाले से आपकी नेगेटिव एनर्जी में भी विंडफॉल ऑफ मनी है, टेन ऑफ पेंटिकल्स है। ये कार्ड जब आता है ये कहता है कि देयर इज समथिंग वेरी गुड, जिसका फायदा आपको भी होगा, आपकी फैमिली को भी होगा। अगर कोई रिश्ता है जो जुड़ने वाला है वो बहुत अच्छे से जुड़ जाएगा, या बहुत रिश्तों के बहुत अच्छे से जुड़ने की नवीद देता है ये कार्ड। अब देखते हैं आपका नेगेटिव एनर्जी में आपके लिए बहुत केयरफुल होने की जरूरत है। धोखा है, डिसेप्शन है, पीठ पीछे कोई वार कर सकता है आपको, आपकी बैक बाइटिंग हो सकती है, बैक स्टैबिंग हो सकती है। ये आपकी नेगेटिव एनर्जी है, इसका आप पूरी ध्यान रखिएगा। अब आपका हेल्थ अलर्ट वैसे तो ठीक है, लेकिन जी वियर्ड सी हरकतें हो रही हैं, आपको समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। आप वीक फील कर रहे हैं, आपका रेस्ट करने को दिल चाह रहा है, यानी कि यू जस्ट कैन नॉट पिन पॉइंट, लेकिन आप बार बार कह रहे हैं मेरी तबीयत नहीं अच्छी है, तबीयत को क्या हुआ ये नहीं पता। तो एक फीलिंग है, ये फीलिंग आपकी चली जाएगी अ लॉट ऑफ लिक्विड ड्रिंकिंग से, पानी से, दूध से, जूसेस से, कॉफी से, डेयरी की चीजें ज्यादा अगर आप यूज करते हैं, डेयरी लिक्विड्स आप ज्यादा यूज करते हैं, तो उससे आपकी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। इट इज जस्ट साइकोलॉजिकल। उसके बाद आपका लव अलर्ट इज वेरी गुड। यू विल, लगता है कि आपकी मुलाकात हो रही है, या कोई बात हो रही है, या कोई बहुत अच्छा माहौल आप दोनों के दरमियान पैदा हो रहा है। और अब आपका करियर और आपकी एजुकेशन, उसके हवाले से, आपके करियर और एजुकेशन के हवाले से कार्ड बहुत अच्छा है। जैसे कोई फाइनल इम्तिहान में आप बहुत बड़ी कामयाबी लेते नजर आते हैं। अब देखते हैं इस हफ्ते की आपकी न्यूमरोलॉजी क्या कह रही है। इस हफ्ते आपकी न्यूमरोलॉजी हमारे जेमिनी दोस्तों की 87 नंबर होता है। जब आपने चीजों को, आपको ये चाहिए कि चीजें इकट्ठी कीजिए, हर चीज को उसकी जगह पर रखिए, सफाई कीजिए, स्प्रिंग क्लीनिंग कीजिए, चीजें अपनी जगह पर दिखाई नहीं देती हैं। आपका काम इस हफ्ते का न्यूमरोलॉजी के हवाले से वो ये कि चीजों को उनकी जगह पर रखिए, इंसानों को भी, चीजों को भी। जैसे अभी हमने देखा कि घर में काम लेकर ना आइए और घर को दफ्तर ना लेके जाइए, दफ्तर को घर ना लेकर आइए। इसी तरह से न्यूमरोलॉजी भी कह रही है हर चीज को उसकी जगह पे रखिए, और फर्स्ट का असूल अपनाइए कि सबसे पहले जो काम करना है उसको आपने पहले ही करना है। आपका लकी स्टोन और आपका लकी कलर जो इस हफ्ते का है वो है जी, कलर आपका ग्रे बनता है, ब्लैकिश ग्रे कलर है आपका। और स्मोकी क्वार्ट्स आपका पत्थर इस हफ्ते का है। स्मोकी क्वार्ट्स इजीली मिल जाता है, स्मोकी क्वार्ट्स मिलता है इस फॉर्म में अगर आपको मिल जाए तो बेस्ट है, तो इजीली मिल जाता है स्मोकी क्वार्ट्स, वो आप यूज कर सकते हैं। आपका देखते हैं इस हफ्ते का डिवाइन मैसेज क्या है हमारे जेमिनी दोस्तों के लिए। जेमिनी दोस्तों के लिए डिवाइन मैसेज ये है कि आप चीज़ों को जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, शायद न्यूमरोलॉजी में देखा था कि चीज़ों को उनकी जगह पे रखिए, वरना हालात आपके हाथ से निकल जाएंगे। अगर आपने फर्स्ट थिंग फर्स्ट ना किया तो आपके हाथ से हालात निकल जाएंगे। आपको बोल्ड स्टेप्स लेने हैं। यकीन रखिए अपने रब पर, अपनी अच्छी नीयत से, नेक नीयत से कोई बोल्ड कदम उठा लीजिए, आपकी मदद होगी, लेकिन नीयत आपकी अच्छी होनी चाहिए। अब मूव करते हैं कैंसर की तरफ। भाई कैंसर दोस्तों के लिए ये हफ्ता जो है इसमें जगलिंग सी नजर आती है। लगता है कि इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर, आपको एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी, बहुत सारे काम इधर से उठाओ उधर कर, तो इस तरह से आपको जगलिंग करनी पड़ेगी। लेकिन जब एक जगल कर रहा होता है ना मदारी, 3-4 गेंदों से एक वक्त में वो खेल रहा होता है, तो ट्रिक होता है कि कीप एन आई ऑन द बॉल,
मकसद पर यकीन रखिए कि आप करना क्या चाहते हैं, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, उस मकसद पर यकीन आपको रखना है और उस मकसद को पाने के लिए आपको भाग दौड़ जगल, इसकी टोपी उसके सर, इस तरह से बहुत सारे आपको काम करने पड़ेंगे। और एक और बड़ी मजे की बात लग रही है, ऐसे लग रहा है कि जैसे आप इधर से बात करते हैं उधर से सुनी जाती है, इधर से आप दुआ मांगते हैं उधर से पूरी हो जाती है। ये बहुत कम दिन ऐसे आते हैं कि जब हम दुआएं कर रहे होते हैं, हम मसल्ले पे बैठे होते हैं, मांगते हैं तो मांगते ही मिल जाता है। लिहाजा इस हफ्ते आपने जो भी दुआ करनी है, जो भी मांगना है, बहुत ध्यान से मांगिए, क्योंकि अभी कैसे फ्रीक्वेंसी है ऐसी कि डायरेक्ट डायलिंग आपकी लगती है इस हफ्ते। और उसके बाद ये है कि जो मनी है, पैसा है, अगर आप पैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मनी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो डिले हो जाए, आपका चेक लेट हो जाए, आपकी मनी डिलेट हो जाए, लेकिन प्रोसेस में है, डेट आगे पीछे हो सकती है, लेकिन तो मनी डिले जैसे हो गई, लेकिन बिल रास्ते में है। तो इस सिचुएशन को आपने हैंडल करना है। एक मशवरा आपके लिए, मेरा मशवरा ये कि अगर आपको कुछ काम आपने करने हैं, कोई बिल पे करने हैं, तो अपने सेविंग फंड से कर लीजिए। कोई इमरजेंसी फंड्स नहीं होते कि उस पैसे को हाथ ही नहीं लगाना, उस पैसे को यूज कर लीजिए, लेकिन डिले मत कीजिएगा। जो भी आपके काम है, मैसेज आपके लिए है कि जो मनी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो डिले हो जाएगी। जहां पर आपने पेमेंट करनी है या जो काम आपने करने हैं, अपने कामों को कंटिन्यू रखिएगा, चाहे आपको अपने इमरजेंसी फंड से लेनी पड़े। उसके अलावा कोई रोमांटिक एनकाउंटर्स हैं, कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात है जिनके साथ बहुत अच्छी गहरी दोस्ती हो सकती है, जो आपके लिए आगे चल के काफी फायदेमंद हो सकती है। और इस हफ्ते बनने वाले रिश्ते बहुत लंबा चलेंगे और इतना इनमें वजन होगा या इतनी उनमें गहराई होगी कि उनसे आप बेनिफिट भी उठा सकेंगे। इस हफ्ते की देखते हैं कैंसर्स के लिए पॉजिटिव एनर्जी की है। पॉजिटिव एनर्जी हमारे कैंसरियंस के लिए ये है कि अगर आप बीमार थे तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, बीमारी चली जाएगी। अगर वो जो भी ज़हनी, जिस्मानी, घरेलू, जो भी चीज़ एक बीमारी की तरह आपको परेशान कर रही थी, वो इस हफ्ते आपकी जिंदगी से रुखसत हो जाएगी, चाहे वो कुछ भी हो। और इर्द गिर्द अगर कोई बीमार था उसको भी सेहतयाबी होगी, यानी कि ये शिफा का वीक है। हेल्थ शिफा आपको इस हफ्ते दस्तयाब हो रही है, जहां भी उसकी जरूरत है वो आपको मिल रही है और अच्छी खबरें भी मिल रही हैं। और बैड आपकी एनर्जी जो है वो ये है कि आपको लोगों के जो बिला वजह की तनकीद का सामना होगा, हसद कह लीजिए, कोई नेगेटिव वाइब कह लीजिए, कि लोग जलन के मारे, हसद के मारे आपको बिला वजह का क्रिटिसाइज करेंगे, तनकीद करेंगे, गुस्से का पर जैसे किसी को आपके बॉस को गुस्सा किसी और पे निकाला, आप कर दिया, यानी कि इस तरह की लोगों की नेगेटिविटी का सामना होगा। तो आगे से हट जाइएगा, इसको फेस मत कीजिएगा। या आपको जो है अगर आप जवाब देते हैं, फेस टू फेस जवाब देते हैं, तो रिश्ते टूटने का इम्कान है। लिहाजा आपको नेगेटिव एनर्जी में आपके लिए मशवरा ये है कि आप या तो बर्दाश्त कर लीजिएगा या सिचुएशन से एग्जिट कर लीजिएगा, लेकिन अगर आप जवाब नहीं देंगे तो वो आपके लिए ज्यादा बेहतर है। जवाब को उधार कर लीजिएगा, उधार बाद में कभी उतार दीजिएगा, इस हफ्ते नहीं, क्योंकि इस हफ्ते हसद का इतना आलम ये है कि रिश्ते टूट भी सकते हैं। अब देखते हैं आपका हेल्थ अलर्ट जो है, हेल्थ अलर्ट आपका बिल्कुल ठीक है। जैसे पहली आयत है कि शिफा हासिल हो सकती है, और आपका लव वाइब में जैसे किसी का इंतजार था तो वो खत्म हो जाएगा, यानी कि वेटिंग इज ओवर, आपके लिए मैसेज है लव अलर्ट में। आपका देखते हैं कि आपकी बिजनेस में कोई बहुत बड़ा आपका काम हो सकता है बड़ी आसानी से, यानी कि अगर आप कोई एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें आपका A+ है, और अगर आपने कोई काम किया हुआ था, शुरू किया हुआ था, तो वो आपकी तवक्को से ज्यादा कामयाबी आपके लिए ला सकता है, यानी कि जो आपका फाइनेंसेस एंड एजुकेशन है उसमें तवक्को से ज्यादा कामयाबी दिखाई देती है। अब देखते हैं आपकी इस हफ्ते की न्यूमरोलॉजी क्या है। इस हफ्ते की आपकी न्यूमरोलॉजी प्रोबेबली लास्ट वीक भी आपके लिए 32 नंबर ही था। 32 नंबर जो आपको तसलसल से इसलिए आ रहा है कि आपको अपने जहन को थोड़ा सा एक्टिव करना है, या जो करंट सोचें आपके जहन में चल रही हैं उनको थोड़ा सा आपने हटाना है। थॉट डाइवर्ट कीजिए, अपनी सोचों को थोड़ा सा किसी और तरफ निकालिए। बहुत ऑब्सेसिवली एक चीज को जब सोच रहे होते हैं तो 32 जो होता है ये नंबर है इंटेलिजेंस का, दिमाग को यूज करने का, और दिमाग को यूज करना, ये जो भी मसला आपके साथ है उसका हल आपको म्यूजिक से मिल सकता है। लिसन टू म्यूजिक, म्यूजिक का कवाली भी हो सकती है, सूफी म्यूजिक भी हो सकता है, एनी म्यूजिक, सो म्यूजिक दैट प्लीजेस यू, उस म्यूजिक से कीजिए। और ये याद रखिएगा ये हफ्ता जो है ये 32 की वाइब के अंडर है। आप देखते हैं आपका लकी कलर और आपका लकी स्टोन क्या है। लकी कलर है जी आपका
लकी कलर है आपका ब्लू। ब्लू की कोई भी फॉर्म ले लीजिए, लेकिन बहुत बहुत ज्यादा डार्क नहीं, डार्क ब्लैक ब्लू से ज्यादा नीचे जो भी यूज कीजिए। फ्रेश ब्लू आपके लिए या स्काई ब्लू आपके लिए बेस्ट रहेगा। और स्टोन आपका है जी ब्लड स्टोन। ब्लड स्टोन बहुत ही खूबसूरत पत्थर है। ये उस वक्त आता है जब आपको एनर्जी की जरूरत होगी। ये फिजिकल एनर्जी को इम्प्रूव करता है ब्लड स्टोन। ये ग्रीन पत्थर होता है और इसके ऊपर रेड स्टोन्स होते हैं, रेड स्पॉट्स होते हैं, यानी कि ग्रीन और रेड का कॉम्बिनेशन एक इंतहाई खूबसूरत ये पत्थर है। इसको आप इस हफ्ते यूज कीजिए। इसे मुजाहिदों का पत्थर कहा जाता है। तो जब भी ये पत्थर जब हम किसी बड़े काम के लिए निकलते हैं तो जो एनर्जी को बैलेंस करने के लिए इस पत्थर को इस्तेमाल किया जाता है। अब देखते हैं आपका मैसेज। आपका मैसेज ये है कि आपको इस हफ्ते सीखना है। इट्स अ वीक ऑफ लिसनिंग, इट्स अ वीक ऑफ लर्निंग। समझिए आप किसी स्कूल के स्टूडेंट हैं और अपनी कुछ सीखने के लिए इस हफ्ते अपने आप को एक स्कूल का तालिबे इल्म बना लीजिए। और जैसे एक तालिबे इल्म मुड़कर अपने उस्ताद को जवाब नहीं देता या बहस नहीं करता, उस तरह से आपने बहस नहीं करनी है, जवाब मुड़कर नहीं देना, ताकि आपकी पर्सनल ग्रोथ हो सके। और उसके साथ आपने जो मेन आपको इस हफ्ते काम करना है वो ये करना है, जो डिवाइन आपका मैसेज है वो ये है कि अपने ऊपर काम करें, अपनी टॉलरेंस पर, अपनी पेशेंस पर। देखिए आपकी बर्दाश्त की हद क्या है। हो सकता है कि आपको गुस्ताखी ऐसी कर लें किसी के साथ कि जो आप के लिए आगे चल के मुश्किल का बायस हो, या आपकी बर्दाश्त जो है वो आपके लिए बहुत बड़े इनाम का बायस हो सके। मूव करते हैं अगले साइन, लियो की तरफ। ये हफ्ता हमारे लियो दोस्तों के लिए है कि आपका मशवरा है। सबसे पहले मशवरे से शुरू करेंगे। पहली बात तो ये कि आपका जो भी काम है ना, आपसे वक्त से पहले खत्म कर लीजिए। आज का काम कल पे डालने की बजाय कल का काम आज कर लीजिए, ताकि आपको कुछ थोड़ा सा टाइम मिल जाए। क्योंकि जैसे जैसे हफ्ता गुजरेगा एक्टिविटीज कुछ इस तरह से ज्यादा बढ़ जाएंगी कि आपके काम फिर डिले हो जाएंगे, जो कि आपके लिए नुकसानदेह है। उसके अलावा ऐसे लगता है कि जैसे अगर आप थोड़ी सी जैसे हम पैरेलल हीलिंग कहते हैं, आपको जैसे कैंडल्स जलाना चाहिए, थोड़ी सी कुछ ऐसी एनर्जी आपके इर्द गिर्द है जिसे आप कॉल कर सकते हैं, आपके अंदर आ सकती है। पॉजिटिव एनर्जी है जो आपके पास से गुजर रही है। पॉजिटिव एनर्जी को अगर आप कैच करना चाहते हैं, बुलाना चाहते हैं, तो उसके लिए थोड़े से पॉजिटिव काम कर लेने चाहिए, चैरिटी ज्यादा कर लें। ये जिस तरह कैंडल्स हैं, ये कैंडल्स जला लें। आपके लिए इस हफ्ते हमारे लिए दोस्त अगर गोल्डन कैंडल्स जलाएं, गोल्डन कैंडल्स आराम से मिल जाती हैं, बर्थडे स्टोर से मिल जाती हैं, तो कोई भी गोल्डन कैंडल लेके वो आप जला लीजिए। और उसके बाद थोड़ा सा जैसे ये लौंग होता है, इसको चूल्हे पे सुलगा लीजिए, उसकी एक खुशबू, लौंग की खुशबू, और उसके बाद ये गोल्डन कैंडल की रोशनी, ये दो चीजें वो जो पासिंग पॉजिटिव एनर्जी है उसको आपके अंदर बुला लेंगे, और ये आपको काफी अच्छा लगेगा। आप महसूस करेंगे चेंज, एक हल्कापन आप महसूस करेंगे, खुशी आप महसूस करेंगे। जो बोझ या काम ओवरबर्डन आप फील कर रहे हैं उससे आप बाहर निकलेंगे। और उसके बाद ये है कि यहाँ पर इस हफ्ते आपके लिए जो लगता है कि आपको तवज्जो देनी है अपनी तमाम रिलेशनशिप्स पर और पार्टनरशिप्स पर। ये दो चीजें इस हफ्ते की जिनको थोड़ा सा आपका फोकस चाहिए कि जो भी ताल्लुकात में प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर कीजिए, वरना वो गिरहें हैं, गिरहें लग सकती हैं। गिरहें लगी नहीं है लेकिन धागा उलझ गया है, तो उस उलझे धागे को गिरों से लगने से पहले सुलझा लीजिए। और उसके बाद ये है कि आप लगता है कि जैसे आपका कोई दोस्त या आपके कोई जानने वाले या आपका पार्टनर आपको काम को, बिजनेस को, जॉइंट वेंचर शुरू कर सकते हैं, लेकिन आपको जो हर चीज में, चाहे वो जैसे मैंने कहा ना कि गिरे लगने से पहले सुलझा लीजिए, तो आपको इस बेसिक मेरा मशवरा क्या है या प्लैनेटरी पोजीशंस आपको क्या मशवरा दे रही है, वो ये है कि आप गुड बाउंड्रीज डिफाइन कर लीजिए। बाउंड्रीज डिफाइन कर लीजिए कि हर किसी की क्या हद है, कॉन्ट्रैक्ट्स क्या, यानी कि लूज सही सही, लेकिन चीजें रिटन और स्पोकन होनी चाहिए। साउंड करा दीजिए कि हर किसी को कि किसकी क्या बाउंड्री है। ये आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप अभी बाउंड्रीज सेट नहीं करते हैं या बाउंड्रीज का इतला नहीं देते कि ये तुम्हारी हद है, इससे आगे ना आना, तो प्रॉब्लम फिर आपके लिए होगी। और उसके बाद आप लगता ही है कि जैसे आप कोई
ہوتا ہے نا جیسے آپ کوئی اپنے ارد گرد نیا سسٹم بنایا, ریویمپ نہیں ہوتا کہ میں نے سارا سسٹم, چاہے وہ کچن کا سسٹم ہے, چاہے وہ آپ کے آفس کا سسٹم ہے, چاہے وہ آپ کا ڈیجیٹل سسٹم ہے, جو بھی سسٹم جس میں آپ ورک کر رہے ہیں اس کو آپ دوبارہ سے ریوزٹ کریں گے, ریویمپ کریں گے, دوبارہ بنائیں گے. کافی اکھاڑ پچھاڑ کرتے آپ اس ہفتے دکھائی دیتے ہیں, جو آپ کے لیے ضروری بھی ہے, کیونکہ آپ کو تسلی نہیں ہو رہی. ایک چیز ہوتی ہے نا کہ بندہ ایک کمفرٹ لیول آ جاتا ہے کہ بندے کا کہ ہاں بھائی یہ اب ٹھیک ہے, وہ کمفرٹ لیول نہیں آپ کا آ رہا. تو اس کمفرٹ لیول کو لانے کے لیے آپ ایک نئی میتھڈالوجی, نیا سسٹم جو کہ بالکل ٹھیک ہے, آپ کا جو ایک کسر یا کمی کی فیلنگ ہے نا وہ دور ہونی چاہیے, کیونکہ جو کمی یا کسر آپ محسوس کر رہے ہیں اس کو آپ نے جو ہے اس کو حل کر لیجئے, کیونکہ وہ بڑھتی جائے گی, وہ کم نہیں ہوگی. آپ کو جو فیل ہو رہا ہے وہ ٹھیک فیل ہو رہا ہے, جو پرابلم آپ فیل کر رہے ہیں کسر یا کمی وہ ہے. اس کے بعد ایک جو آپ کو اپنا جو آپ کی سبلنگز ہیں یا بہن بھائی ہیں یا جو آپ سے چھوٹے ہیں, جو دوست ہیں یا جن کو آپ بہن بھائیوں کا درجہ دیتے ہیں, ان کے ساتھ آپ کی جو اس ہفتے تھوڑی سی آرگیومنٹ ہو سکتا ہے, سیریس لاجیکل غصہ نہیں ہوتا, انٹلیکچوئل, جیسے کوئی آپ کے ارد گرد بہت انٹلیکچولی ایروگینٹ ہو جاتا ہے اور آپ بھی انٹلیکچولی ایروگینٹ ہو جاتے ہیں, یا مائنڈ گیمز شروع کر دیتے ہیں, یا پاور اسٹرگل شروع ہو جاتی ہے. بیسیکلی مائنڈ گیمز آئی تھنک از دا ورڈ جو آپ کے ساتھ کھیلی جائیں گی, مائنڈ گیمز. تو آپ اس کے لیے ذرا پریپیئرڈ رہیے گا. اب دیکھتے سکتے کی پازیٹیو انرجی یہ ہے کہ جیسے ایک دم کو بہت آئیڈیاز کے بلب روشن ہوتے ہیں, آپ کے ذہن میں ایک دم روشنی آتی ہے, آئیڈیاز آتے ہیں, مسئلوں کے حل آتے ہیں. یور مائنڈ از ویری ویری فرٹائل دس ویک, اور آپ کو کوئی بہت بڑا کام مل سکتا ہے, کوئی بہت بڑا پروجیکٹ مل سکتا ہے, یا بہت زیادہ کوئی بڑا کام کر سکتے ہیں, یا آپ کو پازیٹیو انرجی آپ کی ارد گرد گھوم رہی ہے, آپ کو صرف آنکھیں کھولنی ہے اور اس کو اپنے اندر انوائٹ کرنا ہے. اب نیگیٹو انرجی میں دوستوں سے, جاننے والوں سے, اپنوں سے دھوکا, اور کوئی بہت پیارا بن کر آپ سے جھوٹ بولے گا, کوئی بہت زیادہ آپ کو اپنی چکنی چپڑی باتوں سے اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کر سکتا ہے. آپ کا جو ہیلتھ الرٹ ہے وہ ٹھیک ہے. ٹیک اے لاٹ آف واٹر, ڈی ہائیڈریٹڈ ہیں آپ, اور آپ کو واک کرنی ہے, تھوڑی سی واک آپ کو چاہیے, اور آپ کو لیکوڈ انٹیک بہت زیادہ چاہیے. آپ کا جو لو وائب ہے بہت اچھی ہے. اس ہفتے آپ کا یہ لور کارڈ ہے. لور کارڈ مینس کہ if you are looking for love, the love is all about love is all around you. محبت جو ہے وہ بہت زیادہ دکھائی دیتی ہے. اگر آپ ریلیشن شپ میں ہیں تو آپ کی ریلیشن شپ بہت اچھی ہو سکتی ہے, بیکاز لو وائب میں لور کارڈ آ جائے تو اٹس این ایکسلنٹ کارڈ. اور اب دیکھتے ہیں آپ کا جو بزنس اور ایجوکیشن, اس میں آپ کو کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے. یہاں پر دھوکہ بھی ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں کا بہت بڑا بڑا بن جانا ہے. جیسے کوئی شخص ریڈی ہے رائی کا پہاڑ بنانے کے لیے, تو اگر لوگ رائی کا پہاڑ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس میں آپ ٹارگٹ ہے, یہ دھیان رکھیے گا. اب دیکھتے ہیں آپ کے لیے اس ہفتے کا نمبر کیا ہے. نمبر ہے جی 61. 61 نمبر ہوتا ہے سیلف لو کا. آپ نے اپنے آپ کو پیمپر کیجیے, اپنے لیے کچھ خریدیے, اپنے لیے کوئی شاپنگ کیجیے, اپنی جو کچھ اپنے لیے ڈو سم تھنگ, بیکاز وین ایور از 61 یہ سیز کہ لو یور سیلف, لو یور سیلف. اور ہمارے جو لیو دوست ہیں وہ تو سیلف لو کے ماہر ہوتے ہیں. سو اس ہفتے اپنی جو بائی ڈیفالٹ سیلف لو ہے نا اس کو انجوائے کیجیے. آپ کا اس ہفتے کا لکی اسٹون جو ہے وہ سٹرن ہے. سٹرن ویسے بھی لیوز کو سوٹ کرتا ہے. یہ پیلے سے رنگ کا پتھر ہوتا ہے, سورج کی شکل کا ہوتا ہے, اور اس میں گولڈن اینڈ اٹس اے بیوٹیفل پتھر سٹرن. سٹرن آپ رکھ سکتے ہیں را فارم میں, تھمبل فارم میں, اپنے بیگ میں رکھیے, ٹیبل پہ رکھیے. اس طرح جیسے میں نے یہ ہر ہفتے کے پتھر رکھے ہوتے ہیں کہ جو بھی وائب ہوتی ہے میں اس وائب کو انجوائے کرنے کے لیے اس پتھروں کو باہر نکال لیتی ہوں. تو اس ہفتے کا آپ کا پتھر جو ہے وہ ہے جی سٹرن. اب دیکھتے ہیں آپ کا ڈیوائن میسج کیا ہے. ڈیوائن میسج آپ کا یہ ہے کہ اگر آپ اس ہفتے اگر آپ کوئی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں, کوئی ڈیسیژن لینا چاہتے ہیں, تو ایک فیصلہ کیجیے. سوچیے کہ وہ کون سا عمل ہے, وہ کون سا کام ہے جو آپ کو آپ کے رب کے نزدیک کر سکتا ہے.
रब से नज़दीकी के बारे में इस हफ्ते आपने सोचना है कि कोई कौन सा अमल मेरा ऐसा है अभी तक जो मैंने किया है आज तक, और आगे जो मैं करने जा रहा हूँ, कोई एक अमल ऐसा ज़रूर तलाश कीजिए इस हफ्ते जो आपको आपके रब के नज़दीक कर दे। इसकी शायद आपको इस वक्त ज़रूरत है। अब मूव करते हैं अपने अगले साइन वर्गो की तरफ। हमारे वर्गो दोस्तों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हफ्ता है ये। वैसे भी इनका बर्थडे वीक है। आप सबको बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे। जितने भी जिन भी वर्गो की सालगिरह, उसके अलावा ये हफ्ता भी बहुत इंपॉर्टेंट। इस हफ्ते में कई चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सबसे पहली बात तो ये है कि आप इस हफ्ते को जैसे कि एक फीलिंग है कम्फर्ट की आपके अंदर आती है। जैसे जैसे आपको लगता है किसी चीज़ ने आप पकड़ा हुआ था, जकड़ा हुआ था, वो उस चीज़ ने आपको छोड़ दिए, कि जकड़बंद सी जो आप महसूस कर रहे थे 3-4 हफ्तों से, उससे आप जो है वो निकल जाएंगे। कैसे खुद ब खुद से वो रिलैक्स आप फील करने लग जाएंगे और इजी हो जाएंगे। आपका जो फोकस है वो आपके काम पर ज्यादा हो जाएगा। आप राइटिंग कर रहे हैं, इस दफा आप बहुत ज्यादा राइटिंग कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा आपकी प्रेजेंस है, आप उसको एंजॉय बहुत ज्यादा कर रहे हैं, और जो काम भी आप कर रहे हैं वो कामयाबियां उसमें आप समेट रहे हैं। और उसके साथ साथ ये हफ्ता जो है ये रिटर्न का हफ्ता है, यानी कि आपको रिटर्न्स मिलेंगे, जो अच्छा किया उसके रिटर्न मिलेंगी। कोई अगर दूर गया हुआ था तो वो रिटर्न देख लीजिए, रिटर्न किस तरह से आपकी लाइफ पर अप्लाई होता है। दिस इज द वर्ड दैट इज अप्लाइंग। और उसके बाद जो भी है कि कुछ चीजें पोस्टपोन हो जाएंगी या डिले हो सकती हैं, जो आपके लिए फ्रस्ट्रेटिंग होगा। फॉर एग्जाम्पल प्रोजेक्ट लॉन्च होने जा रहा है, कोई काम, कोई इवेंट, कोई फंक्शन, लेकिन लास्ट मोमेंट पर वो डिले हो जाता है या पोस्टपोन या रिस्केड्यूल हो जाता है। इस चीज से भी आपको बहुत इरिटेशन होगी। और उसके अलावा ये भी है कि वो कुछ लोग हैं जो आपके सर पर सवार रहेंगे, कुछ इरिटेंट्स बने हुए, बार बार बातें, बार बार कहानियां आपको सुना रहे हैं। ये चीज आपके लिए थोड़ा सा होगी, लेकिन आप जान भी नहीं इस चीज से छुड़ा सकते। वो लोग हैं भी जरूरी। बहरहाल इस हफ्ते एक बात का अपने ध्यान रखना है कि हो सकता है आप अपने कद से ऊंचे ख्वाब देख लें। ऊंचे ख्वाब देखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जितना ऊंचा आप देखना चाहते हैं देखिए, लेकिन उसके जो स्टेप्स में उसको डिवाइड कर लीजिए, उसको आहिस्ता अप्रोच कीजिए, क्योंकि एकदम आप पहले से 10वें कदम पर नहीं जा पाएंगे। लिहाजा इस चीज को भी अपने ध्यान में रखिएगा कि आपने जो मर्जी ख्वाब देखेंगे तो कामयाब होंगे, लेकिन उसके स्टेप्स अचीवेबल होने चाहिए, क्योंकि फौरी तौर पर उस तरह से चीजें नहीं हो सकती जिस तरह से आप चाह रहे हैं कि हो। अब देखते हैं आपकी गुड एनर्जी क्या है। सब देखिए आपकी गुड एनर्जी ये कि आपको जैसे बंदे का वोकेशनल मूड होता है कि चलो एंजॉय करते हैं, पार्टी करते हैं, दोस्तों से मिलते हैं और रूठे हुओं को मना लेते हैं, या कहीं आउट ऑफ सिटी चले जाते हैं, जो भी आपके हालात बनते हैं उसमें, यानी कि जो लोग भी आपसे दूर गए हुए थे वो हो सकता है आपसे माफी मांगकर आपकी जिंदगी में वापस आ जाए। इस तरह की पॉजिटिव एनर्जी है जहाँ पर आप रिलैक्स हैं, आप खुश हैं, आप एंजॉय कर रहे हैं, आप लोगों को एंजॉय कर रहे हैं, आप उनकी कंपनी को एंजॉय कर रहे हैं। ये पॉजिटिव एनर्जी है। नेगेटिव एनर्जी में है धोखा और बैक स्टैपिंग। कोई आपकी कमर में खंजर घूम सकता है। जरा बाहर में घर का ख्याल रखिएगा कि बाहर में यानी कि जो आप देख नहीं सकते वहां पर क्या है, दुश्मन पर नजर रखिएगा। आपका जो हेल्थ अलर्ट है वो बिल्कुल ठीक है। एंजॉइंग योरसेल्फ। आपकी जो लव वाइब है उसमें बहुत पॉजिटिविटी है। इट्स अ पॉजिटिव वीक फॉर लव। और पॉजिटिव वीक है एंड फॉरगिवनेस एंड फॉरगेट, ये चीज़ ज़रूरी है। उसके बाद आ जाता है आपका बिजनेस एंड फाइनेंसेस परफेक्ट। जो आप काम करना चाह रहे हैं उसमें नए लोग शामिल हो जाएंगे, नया टीम आप कर सकेंगे। यहाँ भी आप बिल्कुल एक कामयाबी से सही कदम उठा के सही रास्ते पर जा रहे हैं। अब देखते हैं आपकी न्यूमरोलॉजी की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए। हफ्ता आपका जबरदस्त नंबर है बर्थडे वीक में। ये नंबर जरूर आना चाहिए। दिस इज 55। 55 इज अ नंबर ऑफ एडवेंचर। इसमें इसमें एडवेंचर जो होता है ना बचपन में, इसमें यानी कि आप रूटीन से हटकर कोई नया काम, कोई नई चीज, अपहेल, तो इस तरह का कोई काम होता है। और इसमें मशवरा ये है कि मेक मोस्ट ऑफ दिस वीक। ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा है। इसमें न्यूमरोलॉजी कह रही है कि जो भी मेजर डिसीजंस लेने हैं वो ले लीजिएगा एंड मेक फुल ऑफ दिस वीक। और थोड़ी सी माइनर आपको एडजस्टमेंट्स करनी है, थोड़ा सा स्टाइल चेंज करना है, कोई रैंडम से अच्छे काम करते हैं, चैरिटी, और अपने जो आपका होराइजन है, जैसे भी मैंने आपसे कहा था कि आपके ख्वाब आपके कद से ऊंचे हो सकते हैं, तो न्यूमरोलॉजी कह रही है अपने कद से 3 गुना ऊंचे ख्वाब देखो। लेकिन वो जो ख्वाब आप देखेंगे बहरहाल उनको वैसे ही डील करना है, बट डू समथिंग बिग दिस वीक। इट्स अ वीक ऑफ 55। 55 इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरीली गुड एंड पॉजिटिव नंबर, मास्टर नंबर है ये। इस हफ्ते का आपका लकी कलर और लकी स्टोन, आपका लकी कलर है जी फिरोजा।
फिरोजा आम पत्थर है, ये पड़ा हुआ है यहाँ पे, दिस इज फिरोजा, इस तरह से थंबल फॉर्म्स में मिल जाता है, उसको यूज कीजिए। और कलर आपके लिए इस हफ्ते का कलर जो है वो ग्रीन बन रहा है, ग्रीन का डार्क ग्रीन बन रहा है, और डार्क ग्रीन के साथ आप शामिल कर सकते हैं ब्राउन। ब्राउन और डार्क ग्रीन का कॉम्बो आपको इसके लकी भी है और सूट भी करेगा। और अब देखते हैं आपके लिए इस हफ्ते का डिवाइन मैसेज क्या है। आपका जो इस हफ्ते का मैसेज है वो ये है कि आप जो भी कर रहे हैं, आप जहां भी हैं, आप जिस भी पोजीशन में, ये याद रखिएगा कि हर फल का अपना मौसम होता है। देयर इज अ रीजन एंड सीजन ऑफ एवरीथिंग। सो जल्दी मत डालिएगा, जो भी आपकी ख्वाहिश है, जो भी आपकी दुआ है, उसके लिए तो इंक्यूबेशन टाइम दीजिए और दुआ कीजिए। और जो इस वक्त की आपकी सबसे शदीद ख्वाहिश है, ये पूरी हो सकती है, लेकिन इसके पूरे होने की जगह जो है वो सजदा है। सजदे में जितना लंबा सजदा करके मांगेंगे, जितनी लंबी दुआ करेंगे, उतना। अब मूव करते हैं अगले साइन लिब्रा की तरफ। हमारे लिब्रा दोस्तों के लिए ये हफ्ता जो है, इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें मुझे होती नजर आती हैं। पहली बात तो ये है कि आपके अंदर एक अल्लाह की तरफ से जैसे कि एनर्जी सी होती है, एक फील गुड सा एलिमेंट होता है, जैसे आप स्टेबिलिटी फील करते हैं। और उसके बाद आपको इस हफ्ते चीजें, जैसे हमारे लिब्रा दोस्त मशहूर हैं बैलेंस के लिए, चीजों को बैलेंस करने के लिए आपको बहुत सारी जैसे होती है ना कॉन्स्टेंट एडजस्टमेंट्स करना, ताकि चीजें जो है उनका बैलेंस कायम रह सके। उसके बाद एक और बात आपके ज़हन में बार बार इस हफ्ते क्रॉस करती नजर आती है कि आपको घर बदलना चाहिए, या मुल्क बदलना चाहिए, या शहर बदलना चाहिए, यानी कि यू वांट टू चेंज, किसी और मुल्क में जाके बस जाया जाए, ये मुल्क छोड़ दिया जाए, ये शहर छोड़ दिया जाए, इस तरह की बहुत सारी बातें। और उसमें मज़े की बात ये है कि आपको उसके साथ साथ अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलना शुरू रहेंगी, और आप सोचेंगे कि यहाँ जाएँ, वहाँ जाएँ, या किस तरह से। उसके बाद एक बात लिब्रा दोस्तों को जो मुझे सबसे पहले वैसे बतानी चाहिए थी, वो ये है कि इस हफ्ते आपके जो है ना, कोई इस तरह की सिलसिला चल रहा है, डायरेक्ट डालेंगे कि आपकी विशेस पूरी हो जाती है, आपकी दुआ मांगते हैं तो पूरी हो जाती है। कुछ इस तरह की सिचुएशन आपके साथ इस हफ्ते दिखाई देती है। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि जो भी दुआ आप मांगे सोच समझ के मांगिएगा, क्योंकि दुआएं जब पूरी हो जाए तो फिर वो रिवर्स नहीं हुआ करती। लिहाजा जरा से अपनी जो मुंह से निकली बात है उस पर ध्यान रखिएगा, जो आप सोच रहे हैं उस पर ध्यान रखिएगा, इसका जरा सा आपको करना है। और उसके बाद एक और बात, इस हफ्ते आपको बहुत सारे डिसीजन आ सकते हैं, सिर्फ स्प्लिट सेकंड में फैसला करना है कि रहना है या छोड़ना है, आगे बढ़ना है या यहीं पर कॉल ऑफ कर देना है। इस तरह की कोई सिचुएशन है जहां पर आपने फैसला करना है, तो ये फैसला खुद करने की बजाय रब पे छोड़ दीजिएगा। खुद शायद आप डिसीजन उतना सही ना ले सकें, जहां आपको स्प्लिट सेकंड में डिसीजन लेना हुआ, कहना जो मेरे रब की मर्जी, मेरे अल्लाह नोस बेस्ट, इस तरह का कोई रवैया अपना लीजिएगा। उसके बाद ये है कि आप का एक और रवैया इस हफ्ते, ये क्योंकि ये इस हफ्ते से लेके अगले 4 हफ्ते आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस हफ्ते कुछ एक्टिविटी है जो 4 हफ्ते चलने वाली है। आप जैसे, एक होता है ना कि बंदा कहता है अब मैंने मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल अपनाना है। मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल वो होता है कि जिसमें आप कम से कम, लेस इज मोर, कम से कम चीजों के साथ गुजारना शुरू करना चाहते हैं, और चीजें उठा उठा के फेंकना शुरू कर देते हैं या देना शुरू कर देते हैं, यानी कि जो आपका सामान है उसको आप आधे से भी कम कर लेते हैं। तो ये एक सिचुएशन है। उसके साथ एक और सिचुएशन है कि आप चाहते हैं कि आपका जो घर है वो, उसको आप अपग्रेड करके स्मार्ट हाउस बना लें। स्मार्ट हाउस एक आपकी विश है बनाने की, तो यानी कुछ स्मार्ट हाउस जिसमें हर चीज़ स्मार्ट हो, अप्लायंसेस स्मार्ट हो, जो पहले की चीज़ें उन्हें ख़त्म कर दिया जाए, जो नई चीज़ें हैं वो स्मार्ट हो, कुछ इस तरह का आपका ज़हन है। अभी 4 हफ्ते की वाइब चलने वाली है, लिहाजा इतना सोच समझ के वक्त गुजारिएगा। अब देखते हैं आपका इस हफ्ते की गुड एनर्जी है। फास्ट फॉरवर्ड, हर चीज़ आप फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। आप जो फैसला भी करना चाहते हैं, जो काम भी करना चाहते हैं वो। और उसके साथ एक और बात कि आपके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा ओवर हुआ हुआ है, एनर्जी ओवर अलर्ट हुए हैं। थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स कीजिए। हाँ, और जो जंग आप इस हफ्ते शुरू करेंगे या जो शुरू होगी वो आप जीत जाएंगे। वो आपकी जीतने का एक वाइब बहुत स्ट्रांग लगती है। नेगेटिव एनर्जी है, जेलसी है बहुत ज्यादा, और लोग आपसे थोड़ा सा इनसिक्योर महसूस करेंगे बिला वजह। इनसिक्योरिटी, जेलसी, और उसके अलावा आपको फील होगा कोई नेगेटिव एनर्जी, जैसे समथिंग
کوئی ہیوی چیز کو بد نظر ایسا بھی آپ محسوس کر سکتے ہیں، لہٰذا اس کی بھی تھوڑی سی کلینزنگ کیجیے گا۔ لبرا لوگوں کے لیے کلینزنگ کا بہترین طریقہ یہی ہوتا ہے کہ میڈیٹیٹ کریں، تھوڑا سا صدقہ خیرات دیں، تھوڑی کینڈلس جلائیں، بخور جلائیں، اپنے ماحول کو کلین کر لیں، کیونکہ یہ سب اتنی حسد ہے آپ کے ارد گرد کہ آپ کو نظر لگ سکتی ہے۔ آپ کی ہیلتھ میں ہیڈ ایک، اگر آپ کو میگرین کا پرابلم ہے تو اس کی آپ پہلے سے ہی احتیاط کیجیے، کیونکہ ہیڈ ایک بھی ہے آپ کی، اور یہ والا ایریا ماتھا، سر، آنکھیں یہ رک سکتی ہیں۔ آپ کا جو لو وائب ہے، لو وائب میں یہ ہے کہ آپ کو اپنے جو بھی آپ کا لو انٹرسٹ ہے، یا آپ کا ہسبینڈ ہے، یا آپ کی وائف ہے، یا آپ کا جو بھی اف یو آر ان اے ریلیشن شپ، ویسے بھی جو بھی آپ کا لو انٹرسٹ ہے، آپ کو تھوڑی سی گڈ باؤنڈریز ڈیسائڈ کرنی ہے کہ کس کی کیا ذمہ داری ہیں، کس کی کیا ذمہ داریاں نہیں ہیں، کیونکہ لوگ اپنی حد سے گزرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ لہٰذا لو میں آپ کو لوگوں کو ان کی حد میں رہنا ہے، یا آپ کو ان کی حد بتانا ہے انہیں۔ اور دیکھتے ہیں آپ کا کیریئر بالکل پرفیکٹ کیریئر، اور ایجوکیشن میں آپ کا ٹریک، آپ کا پاتھ ٹھیک ہے، آپ جو کر رہے ہیں آپ ٹھیک کر رہے ہیں، ٹھیک راستے پہ جا رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں آپ کا اس ہفتے کی نیومرولوجی کے حوالے سے کیا ہے لبرا دوستوں کے لیے۔ 11 اٹس اے ماسٹر کارڈ، 11 11 11 is a master card and a very strong card۔ یہ کارڈ جب بھی آتا ہے کہتے ہیں کہ دنیا پر اپنی انڈیویجویلٹی، اپنی انفرادیت ثابت کرو، جو ڈیسیشنز آپ نے لینے ہیں آپ اپنے اون کر لیجیے۔ اٹس اے ٹائم ٹو سولو فلائٹ، سولو فلائٹ کیجیے، اپنے ڈیسیشنز خود لیجیے۔ 11 کو اسٹڈی ضرور کیجیے گا، کیونکہ اس ہفتے نیومرولوجی کہہ رہی ہے یو رن دی وائب آف 1 and 1 1 and 1 11 11 کی جو وائب ہے اٹس ویری سالڈ وائب and it helps you in taking so many decisions۔ اس کو اسٹڈی کیجیے گا، اس نمبر کو۔ میرا جو مشورہ ہے اس میں یہ ہے کہ اپنی انفرادیت لوگوں پر ثابت کیجیے اور اپنے فیصلے خود کیجیے۔ آپ کے لیے لکی کلر اس ہفتے کا، لکی کلر آپ کے لیے ہے جی براؤن، براؤن آپ کا لکی کلر ہے، اور ٹائیگر آئے آپ کا سٹون ہے اس ہفتے کا۔ ٹائیگر آئے اس وقت ہوتا ہے جب آپ کو اسٹیبلٹی، انرجی، اسٹرینتھ چاہیے، جو کہ آلریڈی آپ میں بہت زیادہ ہے، لیکن اس کو سنبھالنا از another thing۔ اب دیکھتے ہیں آپ کا ڈیوائن میسج کیا ہے اس ویک کا۔ اس ویک کا آپ کا ڈیوائن میسج یہ ہے کہ آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہے، آپ یہ بات یاد رکھیے کہ آپ ایک انسان ہیں، اور انسان کی حدود ہوتی ہیں، لمٹس ہوتی ہیں، کوئی ایک پوائنٹ ہوتا ہے جس کے آگے پھر آپ کو جھکنا پڑتا ہے، سجدہ کرنا پڑتا ہے۔ تو اپنی جو ہے آپ کی اس وقت کی جو بھی مشکلات ہیں ان کا حل آپ کو دعا سے ملے گا۔ اپنے آپ کو سجدے میں جھکائیے، اپنے آپ کو اپنے رب سے جوڑ لیجیے، رب سے قریب کر لیجیے۔ جتنا آپ رب سے قریب ہوں گے اتنا ہی زیادہ آپ کی اس ہفتے کے آپ کے مسئلے جس ہفتے آپ کو پیش آئیں گے ان سے آپ جان چھڑا سکتے ہیں۔ موو کرتے ہیں اگلے سائن اسکارپیو کی طرف۔ ہمارے اسکارپیو دوستوں کے لیے یہ ہفتہ جو ہے یہ ایک انٹرسٹنگ ہفتہ ہے۔ اس میں ہوتا ہے کہ جیسے آپ ہوتا ہے نا سم ٹائمز ایسے وقت ہوتے ہیں کہ آپ جیسے ہر جو کام کرتے ہیں وہ آپ کا ٹھیک ہو جاتا ہے، جو کام آپ کرتے ہیں وہ آپ کو کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو اس طرح کا یہ ہفتہ ہے آپ کے لیے۔ اس میں ایک بات یاد رکھیے گا، اس ہفتے کا جو مین مشورہ آپ کے لیے وہ یہ کہ جو جنگ آپ پیار سے جیت سکتے ہیں، جس کو آپ پیار سے مار سکتے ہیں، اس کو زہر دینے کی کیا ضرورت ہے؟ جہاں محبت کام کر سکتی ہے وہاں جنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس بات کو یاد رکھیے گا ہر کام میں۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیے گا کہ کوئی دوستی کے بھی اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ سے مختلف کام کروانا چاہیں گے، آپ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، ان کو کوئی راز چاہیے، یا کوئی اس طرح کا کوئی دوست بن کر حد سے زیادہ قریب ہونا چاہتا ہے۔ اور لوگوں کی باتوں میں جو زو معنی فکرے ہیں ان پر ذرا دھیان دیجیے گا کہ لوگوں کے بیچ میں یہ انسینویشنز بہت زیادہ آپ کے ارد گرد ہیں، اس پر غور کیجیے گا کہ کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ لوگ اس وقت عجیب و غریب رویہ کا بیہیویئر شو کر رہے ہیں، عجیب و غریب رویہ اپنایا ہوا لوگوں نے، جیسے یہ سب توجہ کے طالب ہیں، لوگوں کو توجہ چاہیے، اس لیے ان کے رویے اتنے عجیب و غریب ہوئے ہیں آپ کے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور بات بھی کہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ شاید آپ نہ سمجھ سکیں دوسروں کی سازش یا نیت، لہٰذا آپ نے یہ ہر بندے کے بارے میں سوچنا ہے کہ اس بندے کو مجھ سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔ یہ بات آپ نے ہر بندے سے ملتے ہوئے سوچنی ہے کہ یہ مجھے کیسے دیکھ رہا ہے، اس کو مجھ سے کیا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، اس بات کا مطلب کیا ہے، یعنی کہ کہیں اور کہ اس کنیکشن کو، اس بات کو کہیں اور جوڑنے کی کوشش کیجیے گا۔ اس کے بعد
जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं सब पे अगर आप डेलीगेट करते हैं, दूसरों को देते हैं और बांट देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो आपको बहुत होगा, आपके लिए फायदा होगा। लेकिन ये भी याद रखिएगा कि कुछ ऐसी जिम्मेदारियां भी हैं जो आपने खुद भी लेनी है। कोई जिम्मेदारी जैसे होता है ना, फाइनल वीटो हो गया, वीटो पावर आप अपने पास रखिएगा। उसके साथ आपका जो है ना हफ्ता, उसमें जो चीज़ बहुत ज़्यादा नज़र आती है वो आती है निगोशिएशंस। बात बात पे निगोशिएशंस करना पड़ेंगी, डिस्कशंस, आर्ग्यूमेंट्स, अपोजिशन। ये इस हफ्ते की हेडलाइन है आपके लिए। और दूसरा ये है कि आपको ये जितनी बातें मैंने बताई हैं इनको आप एंजॉय करते नजर आ रहे हैं, मूड अच्छा है, आप चीज़ों को एंजॉय कर रहे हैं, आप झगड़े को भी एंजॉय कर रहे हैं। ये कभी कभार होता है, लेकिन दिस वीक इट इज़ कि आप एंजॉय कर रहे हैं और हर चीज़ आपको संवार रही है, ज़्यादा ब्यूटीफाई कर रही है। और उसके साथ साथ आपको अपनी लुक्स का कुछ ख्याल पैदा हो गया, ज़्यादा आईना देखना, ज़्यादा अपने बारे में, अपने इमेज के बारे में, अपनी लुक्स के बारे में, जिम ज्वाइन करने के बारे में, ऐसी चीज़ें आप सोच रहे हैं। और ये चीज़ आपको जैसे होता है ना इम्प्रूव भी कर रही है, कुछ इम्प्रूवमेंट भी आपके अंदर काफ़ी आती नज़र आ रही है। अब देखते हैं आपकी गुड एनर्जी की है। गुड एनर्जी ये है कि आप अपने रास्ते की हर रुकावट को रौंदते हुए कामयाबी से आगे निकल जाएंगे। लगता है कि जैसे आपको कोई बूस्टर डिवाइन या कोई आपको एनर्जी का बूस्टर मिला है जो कुदरत की तरफ से आपको मिला है। तो आप इस हफ्ते को वेस्ट मत कीजिएगा। नेगेटिव एनर्जी ये कि लोग आप प्यार से धोखा देंगे, मोहब्बत से धोखा देंगे, आपको मोहब्बत से मारने की कोशिश करेंगे, आपके खिलाफ कुछ ऐसी बातें फैला देंगे जो आपने एतमाद से की थी या कैसे भी। सो बी केयरफुल ऑफ लोगों की मीननेस की, बहुत उनके घटियापन या मीननेस को ज़हन में रखिएगा। अब देखते हैं आपकी हेल्थ अलर्ट क्या है। आपका हेल्थ अलर्ट बिल्कुल ठीक है। इस हफ्ते हेडेक्स है, सर में दर्द है या बॉडी में कोई चोट लगने का अंदेश है, इसकी केयर कीजिएगा। और जैसे गिरने का फिजिकल एलिमेंट कोई नहीं है, लेकिन यूँ लगता है कि जैसे आप अपने आप को कोई चोट लगा सकते हैं। आपका लव अलर्ट कह रहा है कि आपका जो भी लव इंटरेस्ट है उसमें अजीबोगरीब माहौल है। जैसे कोई बंदा जिग जैग खेल रहा है आपके साथ, जिग जैग, इधर से बात ये करनी है लेकिन की ये है, अजीबोगरीब जिग जैग किस्म की सिचुएशन आपके लव में। तो आपको समझना पड़ेगा। आपके काम और करियर बिल्कुल ठीक है। आपको किसी दूसरे की गलती भुगतना पड़ सकती है। अगर आप फॉर एग्जांपल आप पेपर में किसी से हेल्प मांगते हैं या चीटिंग मांगते हैं कि तू मुझे दिखा दे, तो वो आपको गलत सवाल दिखा देगा। लिहाजा लोगों की चीटिंग आपको इस हफ्ते काम में और एजुकेशन में फेस करनी पड़ सकती है। अब देखते हैं इस हफ्ते की आपकी न्यूमरोलॉजी क्या है। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आपके लिए नंबर बहुत अच्छा है। और नंबर जो है ये मास्टर नंबर है, डबल नंबर है 88। 88 जो नंबर होता है, ये नंबर होता है फरावानी का, एबंडेंस का। जैसे कोई एकदम छप्पर फाड़ के चीजें मिलती हैं, तो इस हफ्ते आपको जो मिलेगा बहुत ज्यादा मिलेगा। 88 इज योर नंबर, जो कहता है कि ये हफ्ता आपको बहुत कुछ दे सकता है। और जो सबसे ज्यादा इस हफ्ते आपको चीज मिल सकती है वो है मोहब्बत। यू विल गेट टू मच लव फ्रॉम वेयर यू शुड बी गेटिंग, यानी जिसकी मोहब्बत आपको चाहिए वो आपको बहुत ज्यादा और बेपनाह मिल सकती है। अब देखते हैं आपका लकी कलर और लकी स्टोन क्या है। आपका लकी स्टोन इस हफ्ते का लैपिस है जी। लैपिस, ये लैपिस इस तरह का पत्थर होता है। ये भी मैंने लैपिस पहना हुआ, ये भी प्योर नेचुरल लैपिस है। ये दिस इज लैपिस। इसको आप रॉक फॉर्म में जो पत्थर होते हैं जो हम वीकली जिनकी एनर्जी से फायदा उठा सकते हैं वो रॉक फॉर्म में हो तो ज्यादा अच्छे रहता है। ये कोने, टेबल की कोने पर मैं ऐसे रखती हूँ इसको। तो ये अपने अंदर जो माहौल की या हवा की नेगेटिविटी, गुस्सा, एंगर, एक होती है ना तकलीफ हवा में, वो अपने अंदर ये अब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये पत्थर होना चाहिए। और कम से कम तमाम स्कॉर्पियोस के पास एक बड़ा सा लेपिस ये है, तकरीबन मेरा ख्याल है 1 पाव होगा। 1 पाव इज ओके। 1 पाव बाज़ दफ़ा लोगों के पास 1-1 केजी के बॉल्स भी होते हैं जिनके यहाँ ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो या जादू वगैरह टोना जिन्हें होता हो कि यहाँ होता है, तो वहाँ पर इस पत्थर को रखा जाता है। ये ऐसी सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। और इस हफ्ते का आपका जो लकी कलर है वो है फिरोजी, टर्कोइज।
देखते हैं आपका डिवाइन मैसेज। डिवाइन मैसेज स्कॉर्पियो लोगों के लिए है कि आपने अपने जो इर्द गिर्द का माहौल है उसको समझें और उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं, इस पर गौर कीजिए, क्योंकि आपको हेल्प उस वक्त मिलेगी जब आप दूसरों को हेल्प करेंगे, और दूसरे वो जो आपसे कनेक्टेड नहीं है, जो गैर है। गैरों के काम आइए, कुदरत आपके काम आएगी। अब मूव करते हैं अगले साइन सेजिटेरियस की तरफ। हमारे जो सेजिटेरियस दोस्त हैं इस हफ्ते क्योंकि ऐसे लगता है कि छोटी छोटी मिस्टेक्स भी निकाल रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आप जिस चीज़ का बहुत ज़्यादा आपको इंतज़ार था, किसी पेपर का, किसी लेटर का, किसी कॉन्ट्रैक्ट का, किसी भी चीज़ का, जब वो चीज़ आपके सामने तैयार होकर आती है तो आपको उसमें से यानी कि एक सेकंड में आप बेसिक नुक्ते की गलती भी निकाल सकते हैं, फिर आप कहते हैं कि इसे दोबारा ठीक करके लाओ। ये जो हफ्ता है ये आपके लिए विंडफॉल का है, आप प्राइस इंक्रीज का है। ज़्यादा अगर आप प्राइसेस बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज यानी कि आपकी जो प्रोडक्ट है आपको उसका जो सिला है वो उसके जितना आप चाहें आपको उतना मिलेगा। आपको इस हफ्ते अपने ऊपर पाबंदियां नहीं लगानी। बस दफ़ा सेजिटेरियस इसमें होते तो बहुत होशियार हैं, बिल्कुल भी किसी किस्म की पाबंदी को वो पसंद नहीं करते। तो आप जो करना चाहते हैं ना वो कर लीजिए। ये ना सोचिए कि इस काम को करने के लिए तो कई सालों की एजुकेशन चाहिए, तजर्बा चाहिए, पैसा चाहिए। नहीं, जो आप करना चाहते हैं वो आप करिए, उसके लिए स्टेप उठाइए, आगे बढ़ जाइए। क्योंकि अभी 2-3 हफ्ते आपके पास ऐसे हैं कि आप जो बीज बोएंगे वो उसका वो दरख्त बनेगा। जो पौधा लगाएंगे वो फले फूलेगा। लिहाजा जितना आप पौधे लगा सकते हैं लगाइए, जितने आप जो कर सकते हैं ना, सो योर सीड्स दिस वीक। अपने अंदर से जो ये एक फीलिंग है ना थकन की, इसको निकालिए, इस फील को निकालिए कि आई एम टायर्ड, या मुझे अब रुकना है, या मुझे सोचना है, या अच्छा मैं रिवाइज कर लूँ, अच्छा मैं एक दफ़ा फिर देख लूँ, अच्छा मैं एक दफ़ा फिर सोच लूँ। या उसके अलावा आप ये कर रहे हैं कि ये बंदा मेरे बारे में गलत सोच रहा है, इस पर शक, उस पर शक, इसकी सलाहियत पर शक, यानी कि अजीबो-गरीब किस्म की आप सोच रहे हैं, उनसे आप बिल्कुल निकल जाइए और जो आप करना चाहते हैं करें। आपको वो जो आपका ख्वाब है उसे पूरा करने की कोशिश कीजिए। मैं ऐसे नहीं कह रही कि ऐसे बिला वजह उठे और कोई भी काम शुरू कर दें, बट आई एम सेइंग कि आप अपने दिल का आपका ख्वाब है, आपकी ख्वाहिश है, उसको पूरा करने के लिए आप जो है जो करना चाहते हैं करते हैं, और अपनी मूवमेंट को किसी भी जगह रोकिए मत, चलते जाइए। और ये जैसे सोचना कि नहीं मुझ में सलाहियत नहीं है, अपने ऊपर तो आपने बिल्कुल भी शक नहीं करना, बिल्कुल आज़ाद कर दीजिए अपने आप को और मूव कीजिए। और उसके साथ आपका जो सबसे ज़्यादा आपको अपोजिशन मिल सकती है या प्रॉब्लम मिल सकती है वो उन लोगों से मिल सकती है जो आपके साथ काम कर रहे हैं, आपके पार्टनरशिप में या रिलेशनशिप में। वो लोग आपको इस हफ्ते तंग कर सकते हैं। उसके अलावा या आप अपने रास्ते में खुद रुकावट बन सकते हैं। अदरवाइज इट्स अ वीक ऑफ विश फुलफिलमेंट, इट्स अ वीक ऑफ सोइंग योर सीड्स। अब देखते हैं आपकी इस हफ्ते की नेगेटिव एनर्जी क्या। अब देखते हैं इस हफ्ते की आपकी पॉजिटिव एनर्जी क्या। पॉजिटिव एनर्जी में आपको जो बदलता मौसम जो है ना, ये आपके हालात भी तब्दील कर सकता है, जो हाल अच्छाई की तरफ, आप बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। और कोई ख्वाहिश जो हसरत बन गई थी, जो आपने सोचा था ये कभी पूरी नहीं हो सकती, ऐसी कोई ख्वाहिश आपकी पूरी हो सकती है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे कि ये ऐसी ख्वाहिश भी पूरी हो सकती है। देखते हैं नेगेटिव एनर्जी के। नेगेटिव एनर्जी ये है कि लोग अप्रूवल नहीं देंगे, आपको अप्रूव नहीं किया जाएगा, आपके पेपर्स को रिजेक्ट किया जाएगा, जस्ट आपको तंग करने के लिए। आपका देखते हैं अब हेल्थ अलर्ट। आपका हेल्थ अलर्ट बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अलबत्ता आपको थोड़ा सा एसओपीज को फॉलो करना है, बहुत सख्ती से फॉलो करना है, क्योंकि आप अगर एसओपीज फॉलो नहीं कर रहे तो आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे, और आप खुद प्रॉब्लम में नहीं आ रहे, आप दूसरों को प्रॉब्लम में डाल रहे हैं। तो ये इसको अंडरस्टैंड कर लीजिएगा कि एसओपीज फॉलो ना करने की वजह से दूसरे कैसे प्रॉब्लम में आते हैं, इसको देख लीजिएगा। अब देखते हैं आपका लव अलर्ट के। लव अलर्ट जो है वो जो खवातीन है, सेजिटेरियस खवातीन, उनके लिए तो बहुत अच्छा है। सिंगल लेडीज के लिए यू विल बी फाइंडिंग योर मैन, और अच्छा आपका इस हफ्ते वक्त गुजरेगा। ओवरऑल तमाम सेजिटेरियस के लिए लव अलर्ट बहुत अच्छा है, लेकिन ज़्यादा अच्छा लेडीज़ के लिए है। अब देखते हैं आपके लिए एजुकेशन और फाइनेंस। एजुकेशन के हवाले से पेपर लेट हो सकते हैं, डिले हो सकते हैं, पर्चा आउट हो सकता है, इस तरह की कोई सिचुएशन है। और कारोबार में काम लॉन्च से पहले भी बंद हो सकता है, बंद नहीं हो सकता, री शेड्यूल या
रीलोकेट। अब देखते हैं न्यूमरोलॉजी के हवाले से आपका नंबर क्या है। आपका जो नंबर है न्यूमरोलॉजी के हवाले से वो है 91। 91 कहता है कि जो कदम भी उठाओ बहुत ध्यान से उठाना, क्योंकि आप एक जो भी आपकी सिचुएशन है उसमें आप जैसे एक होता है ना क्लाइमैक्स हो जाता है, या आप एक सीरियस टर्न लेने वाले होते हैं, कोई सीरियस मोड़ आपके सामने आ जाता है, तो उस हवाले से आप की सिचुएशन इस हफ्ते होगी। और आपने अगर कोई गुस्सा है दिल के अंदर तो उसको निकाल दीजिए। 91 लेट गो को भी कहता है कि लेट गो, और बेसिकली 91 कहते हैं सरेंडर कर दो, सरेंडर। तो सरेंडर करना बाज़ हालतों में बहुत अच्छा होता है, लेकिन सेजिटेरियस को कहना कि सरेंडर, लेकिन बहरहाल 91 आपका हफ्ता है और इसका मैसेज है सरेंडर। अब देखते हैं आपका लकी स्टोन। लकी स्टोन आपका है जी फ्लोराइट। फ्लोराइट आपका लकी पत्थर है। फ्लोराइट होता है बहुत खूबसूरत पत्थर, ये मेरे पास ये है, बट दिस इज अ रॉक, इसको हम कलम कहते हैं। ये ग्रीन है। फ्लोराइट होता है, इसमें ये दो रंग होते हैं, ये इस तरह से दो रंगों से मिलकर बनता है, ये समझ लीजिए। लेकिन ये जो कलम है ये ग्रीन है। ये इजीली अवेलेबल होती है, क्योंकि इतनी बड़ी कलम अगर फ्लोराइड प्रॉपर की हो तो बहुत महंगी होती है, लेकिन बहरहाल इसमें कलर जो है वो पर्पल होता है, ग्रीन होता है। ये जो पत्थर है ना फ्लोराइड, ये वन ऑफ द एक्सेलेंट स्टोन्स है, वन ऑफ द बेस्ट स्टोन जो पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं, दुनियावी और रूहानी। जो भी रुकावटें यानी जो लगी होते हैं, बैड एनर्जी के पैचेस होते हैं, रूहानी बैड एनर्जी भी और दुनियावी बैड एनर्जी भी अपने अंदर उनको कैच करके एब्जॉर्ब कर लेता है और क्लीन कर देता है। कलर आपका जी ब्राउन है, ब्राउन है। अब देखते हैं आपका डिवाइन मैसेज क्या है इस हफ्ते का। आपका इस हफ्ते का डिवाइन मैसेज है जी कि आपको मदद उस वक्त मिलेगी जब आप मदद मांगेंगे। मदद मांगनी पड़ेगी, चाहे तो सबसे बेहतर रब से मदद ही मांगी जाती है। तो जब आप मदद मांगेंगे तब आपको मिल जाएगी। अगर आप सोचते हैं ये काम खुद ही हो जाएगा मेरी दुआ के बगैर, मेरी कोशिश से या दुनियावी कोशिश से, या मेरे बार बार पत्थर को हिट करने से ये पत्थर नहीं, आपका काम होगा जब आप मदद मांगेंगे और मदद अपने रब से। अब मूव करते हैं अगले साइन कैप्रिकॉर्न की तरफ। हमारे जो कैप्रिकॉर्न दोस्त हैं उनके लिए ये हफ्ता थोड़ा सा एक होता है रॉकी सा, जिसमें उतार चढ़ाव बहुत होता है, बहुत ज्यादा वेल यू कैन से इट्स अ रोलर कोस्टर टाइप हफ्ता आपके लिए। लेकिन जो अहम बात है वो ये है कि यू आर श्योर ऑफ योरसेल्फ, आपको यकीन है बिल्कुल कि मैं ठीक हूँ, आई एम ऑन द राइट पाथ, मेरा काम ठीक है, मैं ठीक हूँ। सो उस हवाले में जितने भी उतार चढ़ाव, कभी सारे इधर कभी सारे उधर, कभी कुछ, तो उसमें आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। आपने खुद को कंफ्यूजन से बचा कर रखना है, ये गिरह से बांध लीजिए कि आपने नर्वस नहीं होना, आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि लोग इस हफ्ते करेंगे कि आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे, आपसे दो दो बातें करेंगे, कभी हाँ कभी ना। तो आपने बिल्कुल अपने दिमाग को क्लियर रखना है, क्योंकि ये हफ्ता तेज है, फास्ट फॉरवर्ड है। इसमें अगर आप कंफ्यूज हो गए तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। बिल्कुल क्लियर कट सवाल करें, क्लियर कट जवाब, यस नो, इस तरह से बात करिए। चीजों को बिल्कुल अपने ग्रे में नहीं रखना, बिल्कुल ग्रे में अपने आप को अपने नहीं रखना। और उसके बाद लगता ये है कि सब आप इरादा करेंगे कि आपने, होता है ना कि आपने जो क्या हम उसे कहें, सिक्के बचाने हैं, यानी सेविंग का एक नया फार्मूला अपने लिए बनाएंगे कि मैंने पैनीज सेव करनी है, मैंने कॉइन सेव करने, बड़ी सेविंग खुद ही हो जाएगी। यानी कि अपनी स्पेंडिंग से आप हाथ खींच रहे हैं, छोटी छोटी कचरा स्पेंडिंग आप कर रहे थे, ये ले लिया वो ले लिया, तो वो चीजें जो है ना वो आप इस सकते रोकने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद फिर आप जब वो छोटी छोटी आप स्पेंडिंग रोक लेंगे तो आपकी, यानी कि आपको एडजस्टमेंट इस तरह करेंगे कि फिर आपकी सेविंग हो सकेगी। और उसके बाद यूँ लगता है कि जैसे आपको होता है ना, अब ये अपनी महाज अपनी जिंदगी अपने हवाले से इस बात को समझना, मैसेज ये है कि लोहा गर्म है, आपको चोट लगानी चाहिए। लोहा गर्म है, आप चोट लगाए आपके और जो आपका आज तक का तजर्बा है लोगों के बारे में, इंसानों के बारे में, सिचुएशंस के बारे में, उस को काम में लाएं। और जो आपने बात गहरा से बांधनी है, एक और बात, दो बात, वो ये है कि एक गलती बार बार न दोहराइएगा। वो गलती जो आप पहले कर चुके हैं, वो गलती मसलन एक ही बंदे पे आप जिसे पहले धोखा खा चुके हैं ट्रस्ट करके, उसी पे दोबारा ट्रस्ट मत कीजिए। इस तरह की कोई गलतियां जो आप बार बार दोहराएंगे, बार बार करेंगे, जिससे कि आपको इस हफ्ते फिर नुकसान हो सकता है। लिहाजा हर बात पे देखिएगा इस बात का पहले क्या अंजाम हुआ था,
پہلے میں نے اس غلطی کا کیا انجام میرے ساتھ ہوا تھا، کیا ہوا تھا، تو کیونکہ وہی انجام دوبارہ ہوگا، حالات نہیں بدلیں گے۔ اب دیکھتے ہیں آپ کے لیے اس ہفتے کی گڈ انرجی کیا ہے۔ گڈ انرجی یہ ہے کہ وہ آپ کو جو رکاوٹ ہے آپ کے راستے کی، جو بھی رکاوٹیں تھی آپ کی، جو بھی زندگی کا سب سے اہم مسئلہ ہے، اس میں سب سے اہم رکاوٹ ہے، وہ رکاوٹ آپ دور کر گزریں گے۔ اب دیکھتے ہیں آپ کی بیڈ انرجی۔ بیڈ انرجی یہ ہے کہ لوگ اتنا انٹرفیئر کریں گے آپ کی ہر چیز میں، ہر بات میں، آپ کی ہر پرائیویٹ لائف میں، ہر چیز میں گھسنے کی کوشش کریں گے، بات کرنے کی، انٹرفیئر کرنے کی، کہ آپ اریٹیٹ ہو کر رہ جائیں گے۔ اب دیکھتے ہیں آپ کا ہیلتھ الرٹ کیا ہے۔ ہیلتھ الرٹ آپ کا بالکل ٹھیک ہے، انجوائے یور لائف اینڈ ڈو واٹ یو وانٹ ٹو ڈو۔ اب دیکھتے ہیں لو الرٹ۔ لو الرٹ یہ ہے کہ آپ کو دوستوں کی خود غرضی کا سامنا ہو سکتا ہے کہ لو ٹرائنگل ہو جائے، جو چیز آپ چاہتے ہیں آپ کا دوست دوسری چیز کو چاہنے لگ جائے، کچھ اس طرح کی سچویشن، کمپٹیشن اور سیلفشنس کا سامنا آپ کو ہو سکتا ہے۔ سب دیکھتے ہیں آپ کا کریئر اور بزنس کے حوالے سے پرفیکٹ، یو آن دا رائٹ پاتھ، اور آپ کو جیسے ہوتا ہے نا آؤٹ آف بلوز کوئی راستہ مل جاتا ہے، آؤٹ آف بلوز آپ کو اپرچونیٹیز مل جاتی ہیں اور آپ کامیاب ہوتے ہیں۔ نیومرولوجی کے حوالے سے دیکھتے ہیں ہمارے کیپریکارن دوستوں کے لیے۔ نیومرولوجی کے حوالے سے زبردست نمبر ہے 2، سنگل نمبر ہے 2۔ یہ کہتا ہے لو، بیسیکلی ایموشنز، لو، برداشت، پیشنس۔ اس کا بیسک میسج جو ہے نا 2 کا، وہ ہے برداشت سے، پیشنس سے چلیے۔ جب بھی 2 جس بھی ویک کا 2 ہو رہا، اس میں آپ کو زود رنج ہونے کا، اوور سینسٹیو ہونے کا حملہ ہو سکتا ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ ادروائز 2 از آل اباؤٹ لو۔ اب دیکھتے ہیں اس ہفتے کا آپ کا لکی کلر اور لکی سٹون کیا ہے۔ لکی سٹون آپ کا ہے جی یہ ایکوا میرین۔ یہ بھی ایکوا میرین ہے، یہ راک ہے ایکوا میرین کا۔ یہ اس طرح اس فارم میں بھی مل جاتا ہے، یہ را فارم ہے، اس طرح بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ اس میں اتنی انرجی ہوتی ہے، لیکن ایکوا کی اصل انرجی، ایکوا جتنا ٹرانسپیرنٹ ہوگا اتنی، کیونکہ ایکوا جو ہے یہ پانی، ایکوا میرین ہے نا، دس از واٹر، یہ پانی، گہرے پانیوں کا سکون لے کر آتا ہے زندگی میں، تو جتنا ٹرانسپیرنٹ ہوگا اتنا اچھا ہوگا۔ ایکوا آپ کا پتھر ہے اور کلر آپ کا ہے جی گرین۔ اس ہفتے زیادہ تر گرین ہی آ رہا ہے، کیونکہ شاید یہ ہفتہ جو ہے یہ تھوڑا سا اچھا ہفتہ ہے باقی ہفتوں کے حوالے سے، اس لیے شاید۔ اب دیکھتے ہیں آپ کا ڈیوائن میسج کیا ہے۔ ڈیوائن میسج میں ہمارے کیپریکارن دوستوں کے لیے آ رہا ہے کہ آپ نے جو آپ کے گھر میں اگر کوئی ملازم ہیں جو چھوٹی عمر کے ہیں، ان کی ذمہ داری اٹھائیے۔ اس کے بعد اپنے محلے میں اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں کوئی لاوارث بچے ہیں، ان کی ذمہ داری اٹھائیے، یا اس ہفتے یہ ہفتہ ان کے نام کر دیجیے۔ ڈیووٹ دس ویک ٹو چلڈرن جو ہیلپ لیس ہیں یا آرفن ہیں یا جن کو مدد چاہیے۔ اب دیکھتے ہیں، اب چلتے ہیں اپنے اگلے سائن ایکویریس کی طرف۔ ہمارے ایکویریس دوستوں کے لیے اس ہفتے کا میسج بہت زبردست ہے، اسٹارٹ ہی بڑا زبردست ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ہوتا ہے نا، پانی میں چھلانگ لگانے سے پہلے پانی ٹیسٹ کر لیں کہ ٹیسٹ دی واٹرز۔ یہ آپ کے لیے سب سے اہم میسج ہے، کیونکہ آپ کوئی بڑی غلطی کر سکتے ہیں وداؤٹ ٹیسٹنگ۔ ہو سکتا ہے آپ پول میں جمپ کریں تو پول میں پانی نہ ہو، تو دس از سم تھنگ امپورٹنٹ جو آپ کو جس کا دھیان رکھنا ہے۔ ٹیسٹ دا واٹر بیفور یو جمپ۔ اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ آپ کو جیسے ہوتا ہے نا، جو بھی آپ کے دنیاوی کام ہے پھنسے میں، ان کا آپ کو حل اسپرچولی ملے گا، خوابوں میں مل جائے گا، یا دنیاوی کام روحانی طریقے سے ہو سکتے ہیں، دعا سے یا میڈیٹیشن سے یا کسی بھی طرح سے، یعنی کہ ان کو روحانی طریقے سے کرنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ آپ کی سول، آپ کی روحانیت جو ہے اس کی خاص ایک فریکوینسی یا ایک اینگل پر آپ آئے ہیں جہاں پر آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، آپ کو ہیلپ مل سکتی ہے۔ اور اس کے بعد اپنے کمفرٹ زون سے نکلنے کی کوشش کیجیے گا۔ آپ کو جو آپ کا کمفرٹ زون ہے اسے باہر نکلنے میں کامیابی ہے اس ہفتے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ اور اس کے بعد آپ لگتا ہے کہ جیسے اس ہفتے آپ کو ہوگا کوئی بہت ارجنٹ بائنگ آ جائے گی، آپ کو ہوگا میں نے تو یہ چیز خریدنی ہے، ہوتا ہے نا، وہ ایک obsession ہو جاتا ہے کسی چیز کا، تو آپ کے پاس اگر وہ پیسے ایکسٹرا ہیں تو آپ خریدیے گا۔ اس ہفتے آپ نے اپنی سیونگ کو ہاتھ نہیں لگانا،
जो आपका इमरजेंसी फंड है या जो आपकी सेविंग जो आपने एक तरफ करके पैसा रखा हुआ है, आपने उसको हाथ नहीं लगाना, आपने एडजस्ट करना है, पेंडिंग कर दीजिए, पोस्टपोन कर दीजिए, मगर अपनी सेविंग को इस हफ्ते और उसके साथ आपने अपनी वेट को वॉच करना है। आपका वेट जो है वो यानी कि हेल्थ की तरफ उसका इशारा है, अपने वेट को वॉच कीजिए और अपने जिस्म में होने वाली दर्दों का पे भी गौर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपको एक्सरसाइज की ज़रूरत हो, आपको वॉक की ज़रूरत हो, आपकी बॉडी जो है वो एक उसमें से बाहर निकल रही है। यू नीड टू लुक आफ्टर योर फिजिकल हेल्थ। और उसके अलावा अगर आप बाहर कहीं जाना चाहते हैं या बाहर के लिए कोई वीज़ा या पासपोर्ट या ऐसी कोई चीज़, जो भी मसले मसाइल थे इस हफ्ते आपके, वो भी हल हो सकते हैं। अब देखते हैं इस हफ्ते की आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी क्या है। पॉजिटिव एनर्जी ज़बरदस्त है। द सन कार्ड है। जब भी द सन कार्ड आता है कहते हैं कि इट्स अ गुड पॉजिटिव वीक फॉर यू, एंजॉय दिस वीक। और अब देखते हैं नेगेटिव एनर्जी क्या कहती है। नेगेटिव एनर्जी कहती है टेन ऑफ सॉर्ड्स, कि जब भी ऐसा टाइम हो ना कि इंसान अब साथ में आसमान पर हो या बिल्कुल ठीक जा रहा हो या बिल्कुल निशाने पे हो, तो ये हसद जरूर शुरू हो जाता है। कोई ना कोई कमर में खंजर घोंपने जरूर आ जाता है, बैक स्टैबिंग जरूर हो जाती है। तो जरा पर्दा रखिएगा, अपनी चीज़ों को थोड़ा सा ढांप के रखिएगा ताकि मक्खियाँ ना बैठे आकर। अब देखते हैं आपका हेल्थ अलर्ट बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही आप जा रहे हैं, कोई इशू नहीं है। और इसके बाद आपका लव वाइब ज़बरदस्त है, यानी कि अगर कोई नाराज़ था तो इस हफ्ते मान जाएगा, या कोई मैसेज, अगर आपको किसी मैसेज का इंतज़ार था तो वो मैसेज भी आ जाएगा। अब देखते हैं आपका आप पॉजिटिव एनर्जी है आपके काम में भी और आपकी एजुकेशन में भी बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। न्यूमरोलॉजी देखते हैं क्वेरीज दोस्तों के लिए। न्यूमरोलॉजी का मैसेज इस हफ्ते का क्या है? 71 71 इज अ वेरी गुड नंबर, जो कहते हैं कि उलझनें दूर होंगी, और वो उलझनें जिनकी वजह से आपकी सेहत खराब हो रही थी वो दूर होंगी, और आपको थोड़ा सा जो है अपनी ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी, नफ्सियाती, कल्बी हेल्थ शिफा पर गौर करना है। इस पर आपने कोई प्लान करना है, कोई टाइमिंग बनानी है, कोई एडजस्टमेंट्स करनी है। तो 71 जो है वो आपको आपकी तवज्जो दिलवाता है उस तरफ जिस तरफ आपकी तवज्जो नहीं है, और वो है आपकी ज़ात। अब देखते हैं इस हफ्ते आपका लकी कलर क्या है, लकी स्टोन और लकी कलर। लकी आपका स्टोन है जी ब्लैक टूरमलीन। टूरमलीन कहते हैं काले रंग का। दिस इज ब्लैक टूरमलीन। ये इस तरह से बनता है, ये एक टुकड़ा है कान का, इसी तरह से ब्लैक एंड वाइट फॉर्म में होता है। तो ये है जो ये काला हिस्सा है ना, ये टूरमलीन है। मैं टूरमलीन का इतना बड़ा पीस ही अपने पास, अपने छोटे छोटे पीसेस भी मिल जाते हैं, तो वो आप रख सकते हैं। ये भी रख सकते हैं, ये काला अकीक है, इसे एगेट कहते हैं, इसको मैंने बॉल फॉर्म में रखा हुआ, ये भी रख सकते हैं। लेकिन बिकॉज इसमें भी कलर जो शेड्स हैं ब्लैक के फर्क हैं, इसमें भी ब्लैक के जो है वो शाइन है, शेड एंड शाइन हमें चाहिए होती है ब्लैक में, तो वो आपके लिए चाहिए। वैसे तो ये हर स्कॉर्पियो को चाहिए होता है ब्लैक, इस तरह का ब्लैक बॉल स्कॉर्पियंस के लिए ज़रूरी होता है, लेकिन एक्वेरियस के लिए भी ज़रूरी है, खासतौर पे आजकल जब वो अपनी तरफ से थोड़े लापरवाह हो रहे हैं। यानी कि यू नीड अ स्टोन दैट इज़ ब्लैक, और वो बेस्ट उसमें से टॉर्मलिन निकलेगा। और कलर आपका जो है वो पर्पल निकल रहा है, पर्पल, डार्क पर्पल, जामुनी रंग आपके लिए इस हफ्ते लकी होगा। अब देखते हैं आपके लिए डिवाइन मैसेज क्या है। एक्वेरियस दोस्तों के लिए है कि आपको आपकी जो सही वक्त है, टाइमिंग बिल्कुल सही है, जो भी आप कर रहे हैं उसके लिए आप जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आप इस वक्त जिस भी रास्ते पे जा रहे हैं, रास्ता तो ठीक है, लेकिन ये गौर कर लीजिए उसके लिए आपने सदका खैरात उसे इस तरह से उसमें कोई पॉजिटिविटी डाली है या नहीं, ये आपको गौर करना है कि अपने जो भी रास्ता आपने अपनाया है उसमें कामयाबी के लिए उसको आपने सदके से सेव किया है या नहीं। अब मूव करते हैं अपने आखिरी साइन पाइसेस की तरफ। हमारे पाइसेस दोस्तों के लिए ये जो हफ्ता है इसमें थोड़े से आप समझ लीजिए कि आपको अपने ऊपर तवज्जो देनी है, ध्यान रखना है, क्योंकि लग ही रहा है कि आप इस हफ्ते थोड़ा सा जैसे होता है ना, एनर्जी का लेवल बहुत हाई है आपका,
اور آپ کی انرجی کا لیول بھی ہائی ہے. اور ایسے جیسے کچھ مومنٹس انگارڈیڈ مومنٹس آ جاتے ہیں, بندہ بلا سوچے سمجھے زبان سے یا منہ سے کوئی بات نکال دیتا ہے اور جو دوسرے کر دیتی ہے, یا اب غلط میسج آپ نے دینا اس کو ہوتا ہے آپ اس کو دے دیتے ہیں, یا اب ایسی کوئی بات کر دیتے ہیں کہ آپ کا باس ناراض ہو جاتا ہے. جو بھی لوگ جن کے ساتھ آپ کے ریسورسز کنیکٹڈ ہیں ان کو آپ ناراض کر دیتے ہیں. لہٰذا آپ بہت زیادہ دھیان گارڈن مومنٹس ہیں آپ کے منہ سے بات نکلنے کے یا میسج غلط چلے جانے کے, یا ہم جب ٹائپ کریں تو ایک آٹو کریکٹ اپنا بند کر دیجیے, اور جو ری چیک سینڈ سے پہلے ری چیک کر لیجیے. یہ 2 چیزیں ضرور شامل کر لیجیے. اور اس کے بعد کچھ لوگ آپ کی زندگی میں ایسے آ سکتے ہیں جو بڑے مہربان ہیں. آپ کو سب ایسے لوگ ہیں جو بہت مہربان ہیں, بہت سنگل اینڈ یو آر لوکنگ فار لو, تو جیسے عاشق ٹائپ لوگ ہیں, یو کین جسٹ ہیو, یعنی کہ آپ کو صرف سمجھنے کی کوشش کرنی ہے, کیونکہ جو بھی لوگ اس وقت آپ کی زندگی میں آپ کے ارد گرد ہیں وہ صرف اسپیشل کمپلیمنٹس دیں گے, آپ کو ڈائریکٹ نہیں کہیں گے. یہ آپ کی اپنی اس میں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ایبرپٹ ہونے سے بچیں. آپ ایبرپٹ ہو رہے ہیں, جیسے میں نے کہا کہ انگارڈیڈ مومنٹس ہیں جس میں زبان سے ایبرپٹ باتیں نکل جاتی ہیں. اس کے علاوہ ایبرپٹ حرکتیں بھی ہیں جو آپ کر سکتے ہیں, اور کوئی آپ کی اس وجہ سے کوئی مسٹیک ہو سکتی ہے, کوئی غلطی ہو سکتی ہے. اس غلطی کا آپ نے دھیان رکھنا ہے. اور اس کے ساتھ آپ نے ایک بات اور بھی ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ کے جو پارٹنر ہیں, آپ کی جو لائف پارٹنر ہیں, یا جو آپ کے جو پارٹنرشپ اور ریلیشن شپ کی سیٹ میں, آپ نے ان پر نظر رکھنی ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ ان کو آپ کی توجہ کی ضرورت ہو, یا آپ کی انسٹرکشنز کی ضرورت ہو, یا آپ کی ہدایت کی ضرورت ہو, بیکاز دے نیڈ سم تھنگ فرام یو اس ویک, کہ ان کو بتایا جائے کہ ایسے نہیں کرتے, اس کو ایسے کرتے ہیں. یعنی آپ نے تھوڑا سا سخت قدم اٹھانے ہیں اور سخت اسٹیپس لینے ہیں, یا لہجے میں ایک وہ رکھنا ہے, اپنی ایک اسٹرینتھ رکھنی ہے, اپنی آنکھیں کھول کے رکھنی ہے, اور اپنی موومنٹ کو آپ نے بہت زیادہ دھیان میں رکھنا ہے. اور جن کی آپ کو تلاش ہے نا, اگر آپ کو کوئی چیز گم گئی ہے یا کوئی بندہ ہے, واٹ ایور جس چیز کی بھی آپ کو تلاش ہے نا, اسے اپنے قریب ڈھونڈیے. جتنا قریب آپ ڈھونڈیں گے, وہ بہت نزدیک جو چیز کھو گئی ہے وہ کہیں آپ کے بہت نزدیک دکھائی دیتی ہے. اب دیکھتے ہیں اس ہفتے کی آپ کی گڈ انرجی کیا ہے. اس ہفتے کی آپ کی جو گڈ انرجی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو جیسے ایک دم کوئی راستہ ملتا ہے, ایک دم کوئی دروازے کھلتے ہیں, ایک دم کوئی پاسبلٹیز آتی ہیں, بہت زیادہ پاسبلٹیز کے چانسز ہیں آپ کے لیے اس ہفتے. دیکھتے ہیں نیگیٹو انرجی کیا ہے. نیگیٹو انرجی یہ ہے کہ لوگ آپ کے ہاتھ سے چیزیں چھیننا شروع ہو جائیں گے, کام چھیننا شروع ہو جائیں گے, آپ کو جسے ایک طرف کونے میں بٹھانے کی کوشش کریں گے, ثابت کریں گے کہ آپ کچھ نہیں ہے, ایوری تھنگ میں اور آپ کچھ نہیں. اس طرح کا ایٹیٹیوڈ آپ کو ملے گا. آپ کا ہیلتھ الرٹ ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے, صرف غصہ ہے. پتہ نہیں کیوں آپ کو غصہ اس وقت بہت زیادہ آ رہا ہے. اور آپ کا لو الرٹ جو ہے, جیسے میں نے بھی آپ کو کہا کہ لو از جسٹ اراؤنڈ یو, بہت قریب اس پہ غور کیجیے. کریئر اور بزنس کے حوالے سے کوئی شخص ہے جو چاہتا ہے کہ یا تو آپ اپنے امتحانوں میں فیل ہو جائیں, یا جاب سے نکل جائیں, یا جو کام آپ کر رہے ہیں اس میں فلاپ ہو جائیں, یہ کوئی لوگ چاہتے ہیں. تو اس پر آپ کو گہری نظر رکھنی ہے. اب دیکھتے ہیں نیمرالوجی آپ کا کیا میسج دے رہی ہے. نیمرالوجی کا نمبر ہے 19. آپ نے خود کو ایک لمحے کے لیے بھی غلط نہیں سمجھنا. ایک لمحے کے لیے بھی اگر آپ سے کوئی غلطی ہو بھی جاتی ہے تو یہ جسٹ اے ہیومن بینگ. لہٰذا کبھی بھی 19 نمبر جب بھی آتا ہے وہ کہتے ہیں پرائڈ, ٹیک پرائڈ ان یور سیلف. آپ رائٹ ہیں, آپ ٹھیک ہے, اپنے آپ میں پرائڈ لیں. اور جو لوگ آپ کو تنگ کر رہے ہیں یا آپ کو گرانا چاہ رہے ہیں, ان کو آپ ان کا جواب یہی ہے کہ آپ کامیاب ہیں. آپ کی کامیابی ان کو خود ہی ان کے منہ بند کر دے گی. اب آپ کا لکی کلر اور لکی اسٹون دیکھتے ہیں. آپ کا لکی کلر ہے جی, آپ کے لیے بلو کلر ہے. یہ ایک بلو میں لیپس ہوتا ہے, اینی بلو اسٹون. ویسے تو لیپس آپ کو چاہیے, لیپس بلو میں مل جاتا ہے, اور اس کے علاوہ فیروزہ بلو میں ہوتا ہے. تو لیکن سب سے اچھا بلو اسٹون فی الحال جو راک کے فارم میں اور آسانی سے اور کم قیمت میں مل سکتا ہے وہ یہ ہے, لیپس ہے. اور کلر اس دفعہ آپ کے لیے بلیک ہے. بلیک کو آپ کامبو کر سکتے ہیں پنک کے ساتھ. بلیک اینڈ پنک 2 کلرز اس ہفتے آپ کے لیے لکی ہیں. اب دیکھتے ہیں آپ کا ڈیوائن میسج کیا ہے. ڈیوائن میسج ہے کہ آپ کی جو بھی آپ کی اس وقت کی پرابلمس ہیں, جو بھی آپ کا راستہ ہے,
اس میں کامیابی آپ کو برداشت دلا سکتی ہے، پیشنس دلا سکتی ہے، اور ہیو فیتھ اینڈ بی پیشنٹ، یہ آپ کا ڈیوائن میسج ہے۔ دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ہفتہ کیسا رہے گا 12 سے 18 ستمبر۔ اگلے شو کے لیے زندگی صحت رہی، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔